अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप के हवाले से है और आज के जो हमारे स्पीकर हैं सैयद आसिम हुसैन शाह साहब। इनका मैं पोर्टफोलियो बताता चलूँ आपको। इन्होंने जो अपनी बीएस बैचलर की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पौंच रवालकोट से की थी और फिर इन्होंने मलेशिया स्कॉलरशिप विनर की मलेशिया स्कॉलरशिप विन की थी अपने मास्टर के लिए। फिर इन्होंने मास्टर अपना मलेशिया से कंटिन्यू किया। उसके बाद मलेशिया में मास्टर कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। अब करंटली पीएचडी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। और करंटली ये रिसर्च काउंसिल के भी हेड हैं और तस्मानिया ग्रेजुएट रिसर्च को फंडेड। और बाकी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। आसिम शाह साहब, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। काइंडली कंफर्म कीजिएगा। यस यस वालेकुम अस्सलाम असलम भाई। चलें जी। थैंक यू वेरी मच ताला, और शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई कैन जस्ट सी दैट वी डू हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन दिस webinar, so we will try to speak as much English as we can. But yes, definitely, as I previously mentioned, that there are like few things where we need to explain, in a deep ways. Then we can, I think, definitely go with the Urdu as well. But yeah, definitely, I will try to explain in English as much as I can. Let me share my screen first, and then we can start our session for today. Uh, would you I think I'm disabled for sharing a screen. Would you able to allow me to share my screen, Tala? Yes, yes. Okay. Yeah. Thanks. Definitely. Yes, please check again. It's still disabled. I think you only allow the recording process. Yeah. I can transfer you as a host, then you can share it. Sure. Yeah, that'd be great as well. Okay. You are host now. Please share it. Okay, जी. देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन? Yes. Okay, Is जी. it is okay. That's great. Okay, जी. Okay, Ji, let me formally start. So thank you very much for having me in this session. My name is Syed Asim Hussain Shah. I'm a PhD candidate at University of Tasmania, Australia right now. I did masters by research from University Tun Hussein in Malaysia, which is located in Johor Bahru, Malaysia. And I had amazing time there. And I do have a lot of friends there. Thank you for joining, Mr. Naveed. Uh, and I did my bachelor's from University of Poonch Rawalakot, Azad Kashmir. So this is just a little overview of what I did and where I did. So today we will discuss about that how you can grab a scholarship in Australia and why exactly Australia. What is important about the Australia? And beside that, we will discuss about some of the most important things which students normally don't focus. So most of the students, they normally focus those areas. So we will try to discuss those areas and why those areas are important. I will give you some of the examples as well, which we receive actually very recently, some of the cases and some of the like examples. So I will definitely share with you as well. Let me just start. So first of all, why Australia, and what are the some of the famous scholarship in Australia? So just 1 minute, I need to silence my
cell phone, and then we'll continue. Yeah. Okay. First of all, like there is like this kind of perception, specifically when we talk about scholarship. So a lot of people, they always ask about that. Whenever you choose any country, why are you choosing that country? So what is so important about that country? So in term of Australia, the first and most important thing why you choose Australia for your higher studies, specifically when it's come to the PhD and masters by research. So in today's session, I will definitely more focused on research-based degree, which are PhD or masters by research. But definitely in another session, somehow in future, maybe we can discuss about the undergrad as well. But today focus will be mostly on the masters by research and PhD degree as well. So first of all, Australia will provide you the best research facilities. Even you can go any university, any rank university, it doesn't matter, but you will find the best of the best. Whatever you need for your experiment, whatever you need for your analysis, whatever you need for your research, everything will be there for you. So most of the Australian universities, they have uh, like a lot of budget dedicated for the research. So that's the most important thing which we are lacking like most of the time in some other countries as well. Uh, Another thing is about that, and the quality of education is extremely good. What I mean is that uh, they are not too much focused on to producing a mass number of like theoretical stuff, or you can say that the in Pakistan जिसको हम कहते हैं कि रटलाइजेशंस या हमने बहुत ज्यादा किताबें याद करनी हैं. They are not focused on that things. They mostly focus on research based degrees, and the duration of degrees are like quite less. What I I was surprised while someone like in my university when I saw that a lot of the girls and boys, they are doing PhD. They're Australians. They're doing their PhDs in 24, 25. So 23, 24, 25, they are doing PhDs and they almost finish their PhDs at 25. So the reason behind this is that they don't involve in that kind of complicated system which we have back in Asia. So that's why the quality of education, the curriculum is actually very good. So that's the and the second thing is that whenever it's come to the research student specifically, if you're a PhD candidate or a master's candidate by research, they will support you in every single way. For example, if you're a scholarship candidate, so they will pay for every single thing, whatever you're doing. If you're traveling for conference, if you're like conducting any kind of experiments, if you are doing like if you're going for the any summer school, any traveling, everything will be covered by your university, by your scholarship. So that's very important. So that's why it is very important to understand that while whenever you choose any country, what actually that country offer you. So that's very important. uh, Next is most important thing which I feel specifically when I came from like I had experience of like Pakistan, I had experience of then Malaysia definitely. But what I experience here in Australia is that the culture is very much different. And how it's different, the people are much more welcoming. The people are much more casual in term of like if you see around in the university, the associate professor or the vice chancellor, he will definitely sit with you, he will chat with you, and there is no protocol, there is no barrier, there is no such kind of things which we have like a hierarchical stuff in back in Asia, that if you need to approach someone, you should have like that kind of permission, and there is always a kind of barrier that you cannot breach that barrier in term of respect and in term of so many things. So if you want to talk with your supervisor, if you want to talk with anyone, so it is very easy for you to communicate with those people. So that is so much different. And another thing which I just mentioned is about the casuality, that people are not too much the focus on what exactly you wear, what exactly you look like. They mostly focus on your well-being and your the safety, and you are the most important person
for them. So that's the most important thing about the work culture, which is very important, and that's why you choose Australia. And next, we will come to the some of the most famous scholarship in Australia. So there are a lot of scholarship in Australia, specifically when it's come to the PhD and masters by research. Definitely, there are a lot of scholarships as well. For example, I can give you an example of two master scholarship and two PhD scholarship. If you go to the Australian Award Scholarship, this is the masters scholarship, and definitely this is one of the prestigious scholarship in Australia. And the people who get the Australian Award Scholarship are normally the luckiest one, because Australian Award will directly get you from your, the doorstep, and then they will deliver you back in your home. So like, you don't need to spend anything. So they will just get you from your home, and then they will send back to you to your home. So that's why it is very important. And definitely about the criteria, we will discuss journal criteria later on in this webinar. But here I just want to let you know that Australian Award Scholarship is for the master's student, and it is one of the best scholarship in Australia for the master's student. So the people who have the highest like GPA and the people who have a good IELTS score, they will definitely go for the Australian Award Scholarship. This is the general criteria for the students. If you're a high achiever, you will definitely go for the Australian Award Scholarship. Second one is Endeavour Scholarship and Fellowship. This one is also for the student of masters. So there are a lot of fields for this scholarship as well. If you write this on the Google, you will see like there are a lot of fields you can apply. And this scholarship is also for the high achiever, definitely. And when I talk about the high achiever, mean that if you are targeting Australia specifically for masters, so let me clear here that if you're applying for the masters, you definitely should have the high achievement in your bachelor's. Definitely your GPA and definitely your IELTS score should be higher than 7. And another thing, if you have any kind of research exchange, if you have any kind of internship, that would be the plus point for that. So that's very important for the masters, what I'm discussing about right now. I'm just giving you the overview of the journal selection criteria as well. Next, if we discuss about the RTP, which is most famous for the PhD candidates, RTP is a highly competitive and prestigious scholarship as well. RTP is actually research training program, which is actually funded by the government of Australia. And this scholarship is actually, and most of the time, offered by the like almost all of the universities. So I will let you know on the later on webinar that how actually RTP work and how other scholarships work. I'll give you just little bit glance of those things, not in like too deep, but yeah, definitely. And another one is the International Postgraduate Research Scholarship, IPRS, which is also very famous scholarship as well. So beside that, there are a few other scholarships as well, state scholarships, university-based scholarships. Actually, if I talk about the scholarship in Australia, there are a lot of scholarships. Australia is investing a lot of money in research. So definitely, if you want to explore the scholarship, in compare with any Asian countries, I'm definitely not comparing with China, because China is definitely offering a lot of scholarships as well. But if you compare with Malaysia, if you compare with the Hong Kong, if you compare with the Thailand, if you compare with the any other countries in Europe as well, uh, I believe Australia do have a lot of fund for the research. So definitely you should consider for the Australia as well. So these are the some of the glance about why you choose Australia, and why and what are the some of the famous scholarship in Australia. So next we will go for the most important thing which students often miss, and which student often skip while they're searching for the scholarship. So I believe these things are much more important. If you somehow can manage to get together with those things, you are good to go for any scholarship. But what we do is that we always lack in some kind of, in some area. Like I'll discuss about like 3 to 4 areas here, and then you will get the idea that where exactly you are lacking. So this is very important to understand that where exactly you are lacking, because scholarship is always a complete package. It's not like only depend on your one academic achievement, or it's not only depend on your proposal, it's not only depend on your CV.
it is actually a complete package. So we need to group all those things to make our application much more effective. So first and foremost important thing which I always suggest to student is that sit and explore. You know, we don't want to invest our time. We always in a rush. We always want, you know, something happen overnight, but it's not happen overnight. Scholarship is extremely uncomfortable process, and it's extremely long process. So first and foremost important thing is that you need to learn how to sit in front of laptop for 3 to 4 hours to 5 hours, and then you need to learn how to explore. So what you need to explore is that you need to explore about the universities. And recently, like, there are many students who always like send the emails as well that, sir, can you send us the link for the which are the famous universities in Australia? This question you can easily ask from the Google. If you just go to the Google and just write that, which are the best universities in Australia, so Google will give you the answer of like top 9, 10, 13 universities. So after that, what you need to do is that you need to learn how to search the university, and then how to search the faculty, and then how to find out the relevant professor from your faculty. So that's the most important thing we need to learn, and we need to explore. If we are not ready for that, what you need to do, I will give you the real time example at the end of this webinar. I received the email recently from one of the students from Pakistan as well, and I will give you the positive email and the negative email as well, like, you know, the random and customize both, so you will understand that how it can create the impact as well. So what you need to do is that you need to learn how. This is the most important part of the scholarship. If you know how to search the universities, if you know how to search the supervisors, if you know how to spend your time to explore the opportunities, then you are good to go. Otherwise, if you are a person like, okay, I'm sitting for 5 minutes, okay, let's send the 3 emails to the different professors, it's not work like that. So अगर आप उस तरह से भेजेंगे तो आपको रिजेक्शन ही आनी है डेफिनेटली. uh, the second most important thing, you are out of the game if you are just sending the random emails. You know what I highlighted here is that you can see that the sending random emails does not work. Like, sometime maybe it's work like some of the countries, but when it's come to the Australia, it will definitely not work if you are just sending the emails to the random people, you know. Hello, blah blah, my name is this, and I'm interested in your research. I'm so amazed by your contribution in blah blah, so many things. You're out of game already. If you're sending these kind of emails, don't send those kind of emails. It is only ruin, you know, it will ruin your reputation as well as your country reputation. It is not going to help if you're just sending the random emails to the random people. So that's very important, to pick the program which is exactly aligned with your research, and always choose the supervisor which is closely aligned with your research. Otherwise, there is no point to sending the different kind of emails. And next most important thing is बोलो वो that, ब्लूटूथ नहीं चलाया करो would you be able to mute ब्लूटूथ your नहीं चलाया mic? ना बस मेरे ब्लूटूथ नहीं चलाया Yes, please. Yeah, thank you very much. Yeah, I would definitely request that everybody should mute your mic. It's really disturbing. Yeah, I can't see who is that. There are a lot of people, and I'm sharing my screen. So I'm just requesting that everybody should mute your mic. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. The next most important thing is that you cannot fight without a weapon. So, and there are a lot of students who always send that, sir, I don't have a passport. I don't have a, you know, the proposal. Can I apply? Definitely, if you don't have a proposal, if you don't have a academic CV, if you don't have your, you know, all other documents, you are definitely not able to apply anywhere. So it is very important that you should have all the, you know, the required documents, which is definitely academic transcripts, letter of recommendation. In term of Australia, letter of recommendations are extremely important.
because whenever you send the email to any professor after discussion or after interview, that professor will definitely ask you about the some of the recommendation letters. You need to provide the emails of your recommender. So they will definitely send the email to those people and they will provide the recommendation. So in term of Australia, you should aware that you should have a good relation with your previous supervisor, whatever who is your recommender, I don't know. But you should have a good relationship, because Australian professors, they normally prefer to send the email directly to your professors. So that's very important. That's why I highlighted this one as well. So if I talk about the proposal, if you're applying for the government-based scholarship, if you're generally applying, definitely you need the proposal for Australia. So I'm not going to talk about that, how to write the proposal here, because we do have other sessions as well. But definitely I would recommend that you should know how to develop the good proposal, because proposal is the key whenever you're applying for the government based scholarship. I'm not talking about the research supervisor based project, which they already have some kind of proposal or some kind of topic. But definitely I'm talking about, if you are applying for the government scholarship, you should have some kind of proposal, so you can submit to your the university, and then they will consider an evaluation process. uh, Talking about the English proficiency, some of the universities, they will waiver off your IELTS and PTE when you have some kind of, I'll talk about the publication in the next slide as well. If you have a good publications in Australia, the most important thing for your selection criteria is publication. I'm going to talk about that, so I can relate with IELTS as well. So let's go. Yeah. If I talk about that, what is the importance of publication when it's come to the Australia? Highly important. ऑस्ट्रेलिया में जो भी सुपरवाइजर होते हैं, normally they will consider some of, you should have some kind of previous research. I'm not talking about that this is the 100% criteria of that every time. It's, the selection is always based on the uh, publications, but definitely, for example, if I'm talking about the RTP, I know many students who have a 6 to 7 publication, very good proposal, and they have a supervisor acceptance, they have unconditional offer letter, but still they did not able to get selected for RTP because of the, it's very competitive. So if you have like a first author publications, like at least 1 to 2 or 3 publications, that would be extremely great, and it would be a plus point for your application. So the students who already have a publication, I'm not talking about the 7th author or 6th author, people can pay and you just pay someone and your name is inside the paper. That actually does not work, specifically when you are applying for PhD in Australia. So supervisor will definitely ask you about your paper and your research, that how did you contributed in that research. So that's very important. If you have a first author publication, second author publication, at least 2 to 3 publication would be very grateful. So always focus, try to publish your MPhil research, try to publish your final year project, which you did in your undergrad, try to publish it somewhere. So it will definitely contribute in your selection. uh, the most important thing I would say for the PhD candidate in Australia is your idea and your publications. If you have a good publications, if you have a good idea, your chances are 70 to 80% for selection in Australia. So next is that avoid any complexity. I saw there are so many students who always scan their documents and the documents are not really visible. Always try to scan your documents very properly. you know these are the representation of your personality, because I always give one kind of example, that if you made a very good tea and you presented in a very bad cup, so people will remember your bad cup, but they will forget the taste of the tea. But if the tea is extremely good and the cup is bad, people will remember the cup and they forget the taste of the tea. But in other cases, if the cup is very good and the tea is bad, people will remember the cup of the tea, but not the taste of the tea. So that's very important, how you represent yourself, how you're presenting yourself in terms of your documents. That's very important. For example, in documents, if I'm talking about the CV,
For example, you're sending a proposal or CV to your supervisor or someone. If your CV is like, the just that your CV is in a good shape. It should be like, you can use any kind of format. I'm not going to tell about that how to write the CV here because it's not the topic, but definitely your CV should be in a good shape. One of the best, I would say that the format is Europass, where like a lot of people uh, always create their CVs. So it is very important to that your documents should be very clear and accurate. Don't make any kind of mistakes in your documents, whether it's your CV, whether it's your proposal. You should always refine your proposal according to the references. You need to check the references, you need to check the typo, grammar, those sorts of things. So people always consider those things as a very important part of your applications. But what we do is that we always made things and we just send, we send to people, and that is the one thing which students often like get rejected, and they don't send their documents to review. If you have someone who is experienced, who already like got something, you need to send your documents and try to find the time, the suitable time, and try to request those people that if they are able to review your documents, and then they can tell that which area you need to improve. The next is the most important thing which I always tell the students, is that uh, don't wait for anyone. हमारे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे मुंह में अगर कोई कुछ डालेगा तो फिर उसके बाद हम चबाएंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द सर्टेन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. देयर आर सम अदर कंट्रीज, उनका भी बिहेवियर मैंने देखा है कि वो ऐसा ही है कि वी ऑलवेज वेट फॉर द other people to do things for us. We have a lot of potential. I saw like the Pakistani students are extremely talented. They have a like lot of potentials. They are doing amazing work out there. But the problem is that when we are back in our country, we have this kind of attitude always that आधे काम चाचा कर लेंगे, आधे मामू कर लेंगे, आधे अब्बू कर लेंगे, आधे जो है वो भाई साहब कर लेंगे. So that kind of mindset that is already developed by our parents, by our family. So it actually cause a lot of problem whenever we need to do things by ourselves. So the problem is that we are always waiting for people to do things. So never wait for someone to create a CV for you. Never ask someone to do things for you. It is your journey. You have to lead your journey. So मैं उर्दू में इसको ऐसे कहा करता हूँ, अक्सर जो है वो मैं लोगों से ये कहा करता हूँ कि हमें अपनी जंगें जिंदगी में खुद लड़नी पड़ती हैं. कोई आपकी जंग आके नहीं लड़ेगा. अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कोई मेरे लिए एप्लीकेशन फिल करेगा, कोई मेरे लिए गूगल से सर्च करेगा, सुपरवाइजर कोई मेरे लिए जो है वो कोई फॉर्म फिल करके भेज देगा, तो आप शायद किसी खाम ख्याली में. और अगर आप अपना काम खुद नहीं करते, इफ यू आर नॉट डूइंग योर स्टफ बाय योरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. Definitely you will make a lot of mistakes, you will get a lot of rejections, but eventually if you're doing things by your own, अगर आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स वो सारी चीज़ें खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद से जो है वो उनको रिव्यू कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, देन फीडबैक ले रहे हैं, then eventually you will improve. Definitely there will be a time that your application, your documents, yourself will improve a lot and you will get the opportunity. So that's the most important thing, that don't wait for anyone. Start by yourself. Start from scratch. Search on social media, search on Facebook, search on YouTube, search on Google. Every single thing is there. Invest your time. So once you learn that kind of attitude, you are good to go. Nothing can stop you exactly when you are actually ready to do things by yourself. But if you're depending on someone, it's it it is not going to help you in any way. So make sure to start your process as early as possible. जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर चीजें होंगी. उतना आपके पास ज्यादा टाइम होगा मिस्टेक करने का, उतना ज्यादा टाइम होगा आपके पास चीजों को ज्यादा लर्न करने का. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाट आई वाज प्रीवियसली टॉकिंग अबाउट, कि मैं आपको एक लाइव जो है वो करंट एग्जांपल दिखाऊंगा कि हाउ नेगेटिव
नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रैंडम जेनरिक ईमेलिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होता है. So I'm a PhD student, and there are a lot of PhD student in my department as well. So recently we received this email actually from one of the students from Pakistan. So he wrote us the journal email, and he said that he actually addressed me as a professor since I'm a PhD candidate, but he addressed me as a uh, dear professor. I hope you are doing very well. And I am writing to inform you that I am interested in pursuing a PhD in chemistry at Utah, and he bolded it. So I'm giving you the example of generic email. अगर आप ये वाले ईमेल भेज रहे हैं तो आपको किसी ने नहीं रखना. याद रखिए, जब से ये ईमेल आया है बहुत सारा मजाक भी उड़ा है यहाँ पे. आई एम रियली feeling at that time like it is really in term of alarming. I would say, I'm not saying that कि ये कोई बहुत ज्यादा दुख की बात है. Definitely we don't have that kind of information, we don't have that kind of resources to learn those sorts of things. It's okay to make a mistake, but एक ही टाइम में अगर आप एक ही फैकल्टी के 5 6 7 PhD स्टूडेंट्स को वही कॉपी करके 7 8 दफा ईमेल भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फिर लोगों में डिस्कस होंगी चीजें. सो हमें ये ईमेल रिसीव हुआ था रिसेंटली, और हमारी ही फैकल्टी में और भी बाकी सारे PhD स्टूडेंट्स को. एंड दैट स्टूडेंट एक्चुअली अटैच अराउंड 35 डॉक्यूमेंट्स इन फर्स्ट ईमेल. मैट्रिक, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, जितने भी सर्टिफिकेट्स किए थे, एवरीथिंग ही अटैच विद अस. सो अब ये था कि मुझे तो पता था, बट द पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, द प्रोफेसर्स, द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो हैरान हो रहे थे कि लाइक मतलब ये क्या है बेसिकली. अब देखें, अगर आप इसको पढ़ें भी कि interest PhD in chemistry at Utah under the supervision. I have recently completed my master's in classical chemistry, blah blah, University of Lahore, and I keep further in academic and research pursuit in your department. Okay, कोई मसला नहीं है. During my academic career, I have developed a strong foundation in chemistry, focusing on analytic and electrochemical method. Very generic, very generic. My research interests align closely with cutting edge. अब वो बंदा मुझे बता रहा है कि मैं कटिंग एज रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कटिंग एज रिसर्च नहीं है. मुझे भी इसी दिन पता चला कि मैं कटिंग एज रिसर्च कर रहा हूँ. मेरी बहुत नॉर्मल सी रिसर्च में कर रहा हूँ. कटिंग एज रिसर्च वो होती है जिसमें कोई इनोवेशन हो रही है बेसिकली, बट इट्स नॉट द इनोवेटिव, बट द see the body of the email. I am excited about the opportunity to contribute to the learn from the innovative research environment at Utah. ये बहुत ज़्यादा generic है. And then again, he wrote about lot of about the ComSet and additionally academic research as you equip me with the so many things. And I'm eager to discuss how my background. अब ये मुझे ये बता रहा है कि मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ईगर हूँ कि मेरा रिसर्च बैकग्राउंड जो है वो आपके रिसर्च बैकग्राउंड से कैसे जुड़ रहा है. I'm eager to discuss how background of my research goals align with the ongoing project in your lab. I'm confident that I can make a meaningful contribution to your research team and broader scientific community under your guidance. I myself is a PhD student. I'm not going to provide any kind of guidance, but he did not bother to read about myself that on website it's clearly mentioned that I'm a PhD candidate, I'm not a professor. But the problem is that whenever we are so much obsessed, we always don't read about anything. Always, I'm going to insist on that, always send to the email to those professors who are exactly relevant with your area at least. If not the 100%, at least 60 to 70%, 50% at least relevant to your area. Otherwise, don't send the random emails. It is going to ruin your reputation. It is going to ruin the reputation of your country, because you are representing your country. Because if I can show you. I think I did not put it here, but he clearly mentioned in the first line of his paragraph that, sorry, I think मैं आगे चला गया हूँ. Yeah, this one. I think he clearly actually mentioned in the first line of the paragraph that I am from the Pakistan. He mentioned that. So that's why it is very important uh, to what I did. Yeah, that one, sorry. So yeah, you can see that this is the kind of journalized email which you don't need to send to anyone. अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने कैसे ईमेल भेजने हैं, वो वाला भी मैं दिखाता हूं, जो कि रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट के साथ वर्क किया था. शी वाज एक्सट्रीमली पैशनेटेड, शी वाज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग.
उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो we work for around 10 to 12 days on searching, and then she don't have any publication. She have not research background, but she put a lot of effort to read about the professor's research and his ongoing project and his publications. And then she start writing about the email, and she got the response at the same day. So it is very important to work on the customized email, and it is very important to read about the professor and his research. अगर आप effort नहीं डालेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, definitely यार जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस पीपल, दे आर नॉट लाइक किड्स। वो जब भी आप उनको ईमेल भेजते हो ना, उनको देख के पता चल जाता है कि यार बंदे का क्या लेवल है। सो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इफ यू आर सेंडिंग समवन फ्रॉम this kind of email and he is going to respond you? I had a discussion with my supervisor other day. We were sitting here at like office, and uh, we had like we have a group tea, and we had this kind of discussion, and my supervisor actually, I don't know where it's like the discussion come, but my supervisor mentioned that I always see the amount of effort people put in the email. Then I definitely respond if I don't have any position, but definitely I will respond that. So next I'm going to tell you about that, the importance of impact of customized research based emailing. So I would say कि अगर आप रिसर्च करके कस्टमाइज ईमेल भेजते हो तो उसका क्या फायदा होता है। अब ये देखिए उसका क्या फायदा है। उसका फायदा यह है कि मैंने लेफ्ट साइड पे जो रखा है, ये उस स्टूडेंट ने ईमेल किया था सुपरवाइजर को, और राइट साइड पे सुपरवाइजर का रिस्पॉन्स है बैक, एंड दैट रिस्पॉन्स केम ऑन द सेम डे. So what she wrote, she work on the she work on reading the project. She put a lot of effort to make some notes, and then she read about the publications and ongoing project on the supervisor's lab, and then she wrote the customized email. You can get the help from anywhere. You can get the help from chat gpt, you can get the help from any other google bard or any other ai software to, to make it in a good english. That does not matter actually, but the most important thing is that what you exactly putting in the email and how you connecting your research with the supervisor, that's the most important thing. Why I am so much focusing on email, because in australia the most important thing is to approach the supervisor to get the acceptance. The rest is the easy process. आपने कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस के बाद ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी ही नहीं। So that is very important, and that is I think the first step. That's why I'm insisting too much on that. कि customized email का फायदा क्या है. So let's read about this email, and you will see that how she connect the uh, his previous research with the ongoing project. So I hope this email final. My name is Dash, and I'm writing from Islamabad, Pakistan. My research background involving studying the discrimination influence of conspiracy theories in public opinion and behavior. So she wrote about that, how she previously worked on the conspiracy theories and those sorts of things. And then I'm deeply inspired by your contribution in environmental communication, particularly in the focus on highlighting the different impact of climate change, ensuring the voice of most of the herd. I'm eager to explore the how environmental communication can be leveraged to raise the awareness, to inspire the action in pressing issues like climate change and pollution and biodiversity loss. The project you are leading, which aim to enhance the understanding and application of environmental communication through innovation method, align perfectly with my interest. I'm confident that my expertise इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, अब ये देखें कि मेरी एक्सपर्टीज हैं ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में, विच इनेबल मी टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली. एंड देन she talked about that. Thank you for your focus and those warm regards. And she received this email. Sorry. Yeah. And she received this response on the same day. Thank you very much for your email and interest in studying at University of Tasmania. To explain a bit more of process, I won't be a primary supervisor on this project, but I am tracking application to across the schools, and we received the interest so far. We are requesting a potential applicant to write the project proposal while also acquainting themselves with the entry requirement, language requirement, period study, etc.
We will then see if the appropriate supervisor is available for the proposed project in the school and then move further on the application. Please let me know if you would like to proceed. I think conspiracy theories are very interesting part of this space. So how she actually managed to tell about that, how conspiracy theories are actually or could be the potential topic for his ongoing project, कि conspiracy theories को आगे आपके project में आके क्या जो है वो फायदा हो सकता है. So scholarship is always two ways process. It's giving and taking. It's not only a taking. So whenever you are writing to someone, when you are submitting something, so always tell people that what you can do, what you can give them, not ask for what you know. और एक चीज को ना काइंडली जो है वो थोड़ा सा आप ये करेंगे, वेन एवर यू आर राइटिंग email to the supervisors, try to you know try to avoid this kind of sentences, which I'm actually seeing a lot, and I'm actually kind of fed up from like those kind of sentences. I am really inspired by uh, with AI companion. Okay, so I'm actually kind of fed up with those kind of sentences. Dear professor, I'm really inspired by the cutting edge research which is currently going on in your research. अब मोस्टली सुपरवाइजर्स को भी नहीं पता होता कि कटिंग एज उनकी जो है वो लैब में रिसर्च हो रही होती है. आपने उठाना नहीं होता, जिसको हम पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं ना कि हमें आदत है कि हम दूसरों को बस वो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. आपने एक बहुत सिंपल सा सादा सा ईमेल लिखना होता है, एंड इन दैट सादे से ईमेल you just need to let them know that why are you interested in project and what you previously did and what you exactly want to do in future. So that's very important. And yeah, that's the whole story of today's session, and I hope it would be fruitful for you, and I'm really open for the questions if you have any questions. So thank you very much, and that's all from me. Yeah. Yeah. Well, जी तला, मुझे बताइए कि अब क्वेश्चंस लेने हैं या क्या करना है, किस हिसाब से चलना है नेक्स्ट. यस आसिम भाई, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं. आप काइंडली मुझे होस्ट शिफ्ट कर दें, मैं फिर एक एक स्टूडेंट को अलाउ करता जाऊंगा साथ साथ. Okay, let me. Cannot see the option in the host tool actually to shift. आप प्लीज इस तरह करें कि मेरे नेम जो शो हो रहा है ऊपर जूम का, उस पर क्लिक करके. अच्छा, वहां से हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा. ओके ओके जी ओके, दैट डायरेक्ट वुड बी ग्रेट. प्लीज. आपका नाम कहाँ है यार, लोग ही बहुत ज्यादा हैं. वेट. अच्छा. मोहम्मद तलहा रमजान. जी जी, ओके. यस, डन डन हो गया. ओके ओके डन, थैंक यू. नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन आंसर सेशन. Please all participants mute your mics. I will unmute you on number wise. First of all, I unmute this Neelam Mahar. First, unmute your mic and ask your अस्सलाम वालेकुम question. सर. जी वालेकुम सलाम. जी नीलम, बताइए. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया पहली जो 2 स्कॉलरशिप्स थी वो मास्टर लेवल पे थी, तो बाकी भी मैंने कहा आप स्पेसिफाई कर दें पीएचडी लेवल पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं. Well, there are a lot of scholarship for PhD. What I mentioned RTPs for the PhD. इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का, हर फैकल्टी के पास अपने स्कॉलरशिप हैं. इसके अलावा जैसे कि सुपरवाइजर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं वो पीएचडी के लिए. आप कोई भी यूनिवर्सिटी टाइप करें कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश, ओपन प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, ओपन प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ओपन प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, ओपन प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ RMIT. आप गूगल पे ये लिखें, आपके सामने हजारों के हिसाब से प्रोजेक्ट आ जाएंगे. Those are, I think, the best and the easiest
way to approach the supervisor and do that. I think those are the scholarship. इसके अलावा आप के पास जो हैं वो स्टेट के अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया के स्टेट का स्कॉलरशिप अपना भी है. सो देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, बट व्हेन यू गेट द सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस, तो उसके बाद जो है वो स्टोरी स्टार्ट होती है सारी की सारी. So first and foremost important thing is to try to find the relevant supervisor. अगर आपको supervisor acceptance मिल जाती है, then you can go for those kind of scholarships. जी. ओके सर, और आइल्स रिक्वायर्ड होगा इसके लिए? IELTS in PhD, what I mentioned that if you have a publications, sometime IELTS जो है वो waiver हो जाता है if you request, but sometimes some universities मांगती हैं. और I always recommend students कि if you are targeting Australia, तो better IELTS कर लें अपना, because आपसे वो मांगेंगे किसी ना किसी stage पे. So it is always recommended कि PT या IELTS अपना कर लें. अगर नहीं भी है तो आप इनिशियल प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं. ऑन द वे आप उनको रिक्वेस्ट कर दें, वो वाइवर कर दें. अगर वो नहीं करते तो फिर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट डिपेंड ऑन केस टू केस, डिपेंड ऑन द, इफ योर प्रोफाइल इज वेरी गुड, इफ यू हैव लाइक लॉट ऑफ पब्लिकेशंस, इफ योर जीपीए इज गुड, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज वाइवर कर देती हैं. जी बैंड्स अबाउ ठीक है सर. अबाउ और सर 6. एक और या क्वेश्चन था. जी. जी थैंक यू सर. सर एक और क्वेश्चन था कि अगर एक सुपरवाइजर बहुत कोऑपरेटिव है लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो क्या हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर के लिए? अगर वो लेक्चरर है तब भी दे सकते हैं. इट डज नॉट मैटर कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है. द थिंग इज दैट इफ यू वर्क अंडर हर और हिज प्रोजेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो बंदा आपको जानता यस. हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही इज योर को सुपरवाइजर और सुपरवाइजर. अगर वो है तो वो बेस्ट पोजीशन पे है जो आपको रिकमेंडेशन दे सकता है. Yep. ओके सर, थैंक यू. Okay, No please worries. mute your mic. Next one is Irish iPhone. Can I? अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी आरश, हम देख सकते तो नहीं है लेकिन सुन सकते हैं आप. ओके, मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, सॉइल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से. क्वेश्चन बताइए. और क्वेश्चन ये है कि आई हैव अ गुड जीपीए अबाउट 3.8, बट आई डोंट हैव एनी पब्लिकेशन. आई एम वर्किंग ऑन इट. सो शुड आई publish something first or then apply, or should I start applying? नहीं, पहले पब्लिश करें अपना वर्क. अगर आपने डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो डेफिनेटली व्हेन यू सबमिट योर थीसिस उसके बाद स्टार्ट करें. बिफोर सबमिटिंग अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई पोजीशन मिल भी जाती है तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप कहोगे कि मैं अगले साल कंप्लीट करके तो सबमिट करूंगा. It is very important that your documents should be ready while you are approaching supervisors, because they will ask for your thesis as well. आपसे कहेंगे आपने इंग्लिश में थीसिस लिखा है तो अपना थीसिस सेंड करें. अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो पब्लिकेशन सेंड करें. So it is very important. I have Yeah. submitted my thesis. Yes, you have submitted your thesis. Now you can contact with the supervisors, and if they ask, you can provide your thesis. But meantime, please work on your publication, because without publication, Australia में chances काफी कम है. Okay, thank you. जी, no worries. Okay, next one is Saad. Saad, please unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. शायद बताइए. सर मेरा सवाल ये है कि Saad, अगर मैंने आई heard from someone if you have publication in Q1 then you can apply for Australian scholarship. So is it or not? Doesn't matter actually, but definitely when it's come to the quality of publication, if you have a Q1, your chances are much more higher. I know few of the students who have a Q1, Q2, but they still could not able to get the scholarship. I have two friends, one from India, IIT in Bombay. That guy selected without publication. I have one friend from Pakistan, Peshawar. He did his masters from Thailand, Chula, Thailand. He got selected without publication, but the work they did in their masters was amazing. So if your work is so good, but you're still unable to publish, you still can be selected. The thing is that you should know how to defend your work, and you should have a good idea that what I can do in future. आप क्या कर सकते हो? That's very important. ओके सर. और मेरा दूसरा सवाल ये है कि बेस्ट टाइम कौन सा है ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए? सर पूरी साल खुले रहते हैं.
प्रोजेक्ट बेपनाह हैं। इफ़ यू ट्राई टू सर्च फॉर ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप और प्रोजेक्ट, तो वो पूरी साल ओपन रहते हैं। आरटीपी के 2 साइकिल्स होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, ऑलमोस्ट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। सो इफ़ यू गेट द सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस, अगर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन आरटीपी के लिए नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाती है फॉर इवेल्युएशन पर्पस। डेफिनेटली आरटीपी इज़ वेरी competitive, very prestigious, but still it's a good way to go for that. Yeah. Okay, हेलो thank you, अस्सलाम sir. वालेकुम सर। जी वालेकुम ओके अस्सलाम। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट जी। वन इज सर साद। मेरा प्लीज प्लीज वेट करें अपनी बारी का। नेक्स्ट सात सात की बारी। मैं नंबर वाइज बोलता जा रहा हूँ, आप प्लीज अपनी बारी का वेट करें। सर ओके मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि मैंने मास्टर्स किया हुआ और अगेन मैं अभी मास्टर्स ही करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे टॉपिक या सब्जेक्ट में ना। तो मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी पहले सीरियल क्रॉप्स पे रिसर्च है, तो मैं फॉडर पे करना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं इस चीज़ को और इसका मतलब इसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि मैंने ना इस पे एक क्राइसिस देखा है फॉडर में। तो मैं इसको क्या कैश कर सकता हूँ अपनी ईमेल में कि मैं मतलब एक इशू को लेके उनको कन्विंस करूँ कि मुझे इस पे आप एक्सेप्ट करें। डेफिनेटली, बट आई वुड से कि व्हेन इट्स कम टू द मास्टर स्कॉलरशिप, ज़्यादातर आपका जो काउंट होता है वो आपका हाई जीपीए काउंट होता है। आपकी पब्लिकेशंस डेफिनेटली व्हेन इट्स कम टू द आपकी इंटर्नशिप क्या है, आपने ओवरऑल जो है वो कम्युनिटी सर्विसेज क्या की हैं, आपका आइल्ड स्कोर 7.5 से ऊपर होना चाहिए व्हेन इट्स कम टू द मास्टर स्कॉलरशिप। ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन अवार्ड में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। तो ट्राई टू अवॉइड ट्राई टू मेक अ वेरी गुड प्रपोजल and try to make try to appear in IELTS and try। याद रखिए मास्टर्स के जितने भी स्कॉलरशिप है उनमें आपका IELTS नेसेसरी है, so that is very important। so yeah। नेक्स्ट वन इज औरंगजेब। 5257 औरंगजेब। वालेकुम सर। जी और अगजेब बताइए। सर मैंने ना इस साल मास्टर्स के लिए आरटीपी में अप्लाई कर दिया हुआ है ठीक हो ऑस्ट्रेलिया गया, में। सही हो तो गया। अभी मैं रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ और होपफुली हम्म। अच्छा होगा। मुझे आप सिर्फ डिटेल में ये बताएं कि वीज़ा प्रोसेस कैसा है। अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं आपका वीज़ा लग पाता तो क्या हर्डल्स आते हैं, मतलब डिटेल में बताएं मुझे इस बारे में। वीज़े के बारे में चलो हम किसी और दिन बात करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द वीज़ा, बिकॉज वीज़ा इटसेल्फ इज अ I mean, it's a long process, but for definitely for PhD, it's is 100%। Like PhD का visa आपका कभी भी reject नहीं होता। If you have a 100% scholarship, then your visa would be, the chances of your visa is like 100%। But अच्छा सर, about masters, I really don't know about the masters के visa। अगर आपका scholarship, definitely अगर आपका 100% scholarship है तो chances आपके visa के बहुत हाई होते हैं। सो सर ऐसे वी हो विल सकता डिस्कस। है कि आप मुझे ये करेंगे, और एग्जेब आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में आई बिलीव आप होंगे, तो बाद में आप मुझे कॉल कर लीजिए कल परसों किसी टाइम, वी कैन टॉक अबाउट दैट। ठीक है, जस्ट बस वन थिंग मोर, ऐसा हो सकता है कि मैंने एमआईएस के लिए भी अप्लाई किया है। पहले मैं एमआईएस अगर हो जाता हूँ तो वहां पे चला जाऊँ, फिर वहां से आगे प्रोसीड कर लूँ। व्हाट डू यू से? डेफिनेटली MIS इज अ गुड ऑप्शन। और डेफिनेटली आपकी, आई डोंट नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की हुई है, बट या द फिंगर क्रॉस फॉर दैट, बिकॉज अभी रिजल्ट नहीं आया उसका। सो वी कैन सी कि उसमें क्या होता है। और मास्टर्स अगर आपका मलाइशिया से हो जाता है, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, यूकेएम, यूएसएम, यूटीएम, यूपीएम, अगर अच्छी रिसर्च यूनिवर्सिटी से और आपकी अच्छी पब्लिकेशंस हो जाती हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो पीएचडी के लिए जो हैं वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, इफ़ यू डू हैव सम पब्लिकेशंस। या थैंक यू। नो वरीज। ओके नेक्स्ट वन इज अंजला रफाकत। जी नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं हम्म। अभी 7th सेमेस्टर मेरा हो चुका है, अब मैंने 8th सेमेस्टर स्टार्ट करना है अपना। तो मेरा सीजीपीए 3.88 है, तो मैं मास्टर्स हम्म। के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अभी से अप्लाई कर सकती हूँ? आपको रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी मास्टर्स के लिए, बिकॉज इफ़ यू गो फॉर द ऑस्ट्रेलियन अवार्ड और इफ़ यू गो फॉर एनी अदर मास्टर्स बेस्ड स्कॉलरशिप, तो सबसे पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, और रिक्वायरमेंट्स आर ऑलवेज रिटन। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपकी यूनिवर्सिटी जब, सॉरी, आपकी डिग्री जब कंप्लीट होने में एटलीस्ट 4 से 5 महीने रहते हों, तो यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट।
अगर आपके पास होप सर्टिफिकेट है तो उसकी बेस पे आप अप्लाई जरूर कर सकते हो, बट यू नीड टू मेंशन दैट व्हेन योर डिग्री इज गोइंग टू कंप्लीट एंड व्हेन यू आर एक्चुअली गेटिंग द transcript and those sorts of degrees and stuff like that, because on later on you need to provide that as well. So definitely आप apply कर सकती हैं, but make sure to read all the requirements whenever you are choosing any kind of scholarship. ओके सर, थैंक यू सो मच। No worries. सर मेरा हाथ ऊपर नहीं हो रहा, मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ। सर आपके हाथ के लिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता इतने दूर से हो जाएगा। सर जस्ट अ क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है। Okay, you can ask. Okay. सर मेरा यूएस से भी हो गया है और इधर से भी मुझे ऑफर आई है, तो मैं यहाँ आके फिर छोड़ के यूएस से जा सकता हूँ? Please wait. I think net issue from host. जी जी, सही है सही है। Okay. Okay. Who is the next one? Next one, Naval Fatma. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बताइए नवल। सर सर मैंने आपसे पूछना था, मेरा एमफिल जो सा है ना, मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है और फॉल आर्मी बम पे था, नैनो पार्टिकल्स और इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड। लेकिन मैं पीएचडी क्वेश्चन करना, बताइए। जी जी, हाँ जी, क्वेश्चन बताइए। पीएचडी के लिए मैंने ना कॉलर रिहेबिलिटेशन जो सा है ना उसके लिए मैंने अप्लाई किया। जैसे आपने बताया ना कि कवर लेटर जो सा है हमने इस तरह लिखना होता है, तो मैं सेम इसी तरह मतलब 5 to 6 डेज मेरे लग जाते थे। मैं जो मैंने सुपरवाइजर को चूज करती थी उसके मैं रिसर्च पेपर और उनका जो प्रोजेक्ट जो से है ना करंट प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड मैंने पढ़ के वो सेम उसी तरह ना वो सेंड करती थी। तो लेकिन फिर क्वेश्चन भी क्या है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इस वजह से है कि मेरी प्रीवियस जो एमफिल में रिसर्च है और ये जो है कोआला की रिसर्च है ये डिफरेंट है, इसलिए है? दैट्स द वन रीजन डेफिनेटली। इफ यू आर टारगेटिंग ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी रेलिवेंसी नहीं है, इफ़ योर रेलिवेंसी इज अराउंड 50%, 60% स्टिल ओके। लेकिन ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने नैनो पार्टिकल्स पे काम किया और आप टोटली उसको छोड़ के आप एक नई जो है वो रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं, या तो कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सुपरवाइजर को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि अपने एरिया से रिलेटेड सुपरवाइजर्स को टारगेट करने की कोशिश करें। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। Next one, Sana. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस है, तो हमारे कोई अंडरग्रेड में कह लें कि कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं होता, यानी कि आप कोई रिसर्च नहीं करते बीएस में, बैचलर्स ही है। हम्म तो मेरे हैं कुछ जर्नल रिव्यू आर्टिकल या बुक चैप्टर हैं, तो हम्म। उस बेस पे अब एरिया कोई स्पेसिफिक तो नहीं है हमारा जिसमें हमारी कोई प्रीवियस रिसर्च हो, तो हम उसको कैसे फिर अलाइन करेंगे अपने प्रोफेसर के साथ? क्योंकि हम तो फिर सब में अप्लाई कर सकते हैं, हमारा तो कोई स्पेसिफिक पीछे बैकग्राउंड तो नहीं है। देखें ना, आपकी डोमेन कोई तो होती होगी। अगर डीवीएम में आपने किया है तो उसके आगे अगर आप मास्टर्स में फॉर एग्जांपल अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी डोमेन्स कोई तो बनती होंगी ना। आपने उन्हीं डोमेन्स को सर्च करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फाइनल सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट तो पढ़े होंगे ना जो मेजर कंट्रीब्यूटर हुए होंगे आपकी मास्टर्स के, और सॉरी बीएस के। और उसके अलावा जिन एरियाज में आपने रिव्यू किए हैं, दैट वुड बी ग्रेट कि अगर आप उन रिव्यूज की को समराइज करें कि आपने किन एरियाज में वो रिव्यूज लिखे हुए हैं, तो उस एरिया से रिलेटेड जो है वो आप अपना प्रपोजल डेवलप करने की कोशिश करें। बिकॉज वेन एवर इट्स कम टू द प्रपोजल, मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ बता चुका हूँ कि प्रपोजल इज़ द की इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर सुपरवाइजर बेस्ड प्रोजेक्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं तो वो तो ऑलरेडी रिटर्न होता है कि अच्छा मैंने इस एरिया में काम करना है, तो आप मुझे ईमेल करें। और अगर आपका सुपरवाइजर के साथ जो है वो बन जाता है लिंक और रिलेशनशिप, तो फिर उसमें सीन ये होता है कि सुपरवाइजर आपको उसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहता है। बट डेफिनेटली इफ यू आर competing विद लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो आपने अपने प्रपोजल को बहुत इफेक्टिव बनाना होता है। और यू नीड टू सबमिट द प्रपोजल, यू नीड टू सबमिट योर क्वालिटी सीवी और दो सोर्स ऑफ थिंग्स। तो आप प्रपोजल बनाएं अपने अकॉर्डिंग जिन पे आपने रिव्यू पब्लिश किया है, तो वो आई थिंक एक ग्रेट एरिया होगा आपके लिए। ओके सर, थैंक यू सर। नो वरीज। Next, we have Ansala Rafakat.
आई थिंक Sir, इनके I क्वेश्चन already हो have asked. आई थिंक उनका हो ओके गया है सर, जी, सॉरी उनका सर। हो गया। प्लीज जिनके हो गए काइंडली आप लोग अपने हैंड लोअर कर हाथ लें नीचे काइंडली। कर दें, हाँ ये भी है। जी। नेक्स्ट सना। सना, you can unmute yourself. Then next we have the Waleed. सलाम सर। जी वालेकुम सलाम जी, वलीद बताइए। सर मेरी जो है बैचलर्स है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में और 3.61 सीजीपी है। इसके अलावा मेरे एज अ थर्ड ऑथर पब्लिकेशन है बीएमसी जिनोमिक्स में। ठीक हो गया। तो मेरे पास आइल्स वगैरह नहीं है, तो क्या चांसेस हैं विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कि मैं अप्लाई करूं ऑस्ट्रेलिया में और मास्टर्स के लिए मास्टर्स के बगैर लिए? आइल्स के कोई चांस नहीं है आपका, आपको देना ही पड़ना है। पीएचडी के लिए आपका वाइवर हो जाता है, मास्टर्स के लिए नहीं होता। मास्टर्स के लिए आपको चाहिए IELTS, और आपको काफ़ी और अच्छे सर बैंड्स चाहिए। जी और इसके लिए कोई रिसर्च प्रपोजल भी लिखना होता है एमएससी के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं? जी जी, आपको रिसर्च प्रपोजल डिपेंड करता है आप कौन से स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ऑस्ट्रेलियन अवार्ड में करोगे तो आई वुड से कि आपको चाहिए प्रपोजल। मैं दोबारा जो है वो देख के डिटेल्स तो आपको बता भी दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। श्योर, नो वरीज। जी नेक्स्ट कौन है हमारे पास? गुजाला मीर। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि मेरा सीजीपीए कोई खास ज़्यादा नहीं है, मतलब 2.8। हम्म पीएचडी के लिए मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ और टोफल है मेरे पास और हम्म। पब्लिकेशन भी कोई नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने चांसेस का आइडिया लेना चाहती हूँ कि क्या अम, मुझे मतलब चांस मिल सकता है इस प्रोफाइल के साथ, मुझे अप्लाई करना चाहिए या? देखिए दो तरीके होते हैं। इफ़ योर जीपीए इज़ लो, यू ऑलवेज कवर योर जीपीए विद द पब्लिकेशंस। और जैसे आपने बताया कि आपका जीपीए लो है, तो उसके साथ आपकी पब्लिकेशंस भी नहीं हैं। अ, हमेशा से एक एरिया को दूसरा एरिया कवर करता है। What I previously told you that scholarship is a full flash package. It's not only depend on your GPA. It's not only depend on your proposal, but it's depend on overall your application. ये म्यूट कर दें किसका माइक है? ओके सर, थैंक यू। और सर ये है ना कि जो मेरा थीसिस वर्क था, मतलब मैंने काम किया तो मेरी सुपरवाइजर ने ना मुझे, केमिस्ट्री में है मेरा, तो करेक्टराइजेशन करा के नहीं दी थी। मतलब मैं काफ़ी टाइम जो है वो मेरा इस वजह से, हालांकि मैंने लैब वर्क बहुत पहले कंप्लीट कर लिया था लेकिन मेरा नहीं हो सका थीसिस, इस वजह से कि वो अवेलेबल नहीं थी हमारी यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो जी जी। ये था कि बाहर से करा के उन्होंने देनी थी, मुझे काफ़ी लटकाए रखा और बाद में जो है ना मतलब आप डिफेंस से अपना कोई एक क्वेश्चन महीना पे आ पहले जाएं, क्योंकि मुझे। देर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड हेयर, तो इतना टाइम आई बिलीव हमारे पास नहीं होगा। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आए तो दैट वुड बी ग्रेट। या ये सर वो ये है कि मेरे पास अब डाटा नहीं है, जो एक्चुअल डाटा है, तो उसके बगैर पब्लिश करने का क्या चांस है, मैं किस तरह से कर सकती हूँ? कोई डाटे के बगैर नहीं नहीं कर पब्लिश हो सकती? सकता, सिंपल इज दैट। या नहीं हो सकता। हम्म, ओके सर, जी। जी हु इज नेक्स्ट? थैंक यू सो मच। नो वरीज। Aman, you can unmute yourself. Aman Basu. जी वालेकुम सलाम। अमान आपकी आवाज़ बहुत ही लो है, थोड़ा सा जो है ना कोशिश करेंगे। जी यार, मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ बेहतर अब। जी अब बताइए। असल में एक क्वेश्चन ये था कि स्टडी गैप कहाँ तक, कितने ईयर्स का एक्सपेक्टेड है? आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है? नहीं, एमएस की, मास्टर की। एमएस के लिए तो स्टडी गैप डेफिनेटली मैटर तो करेगा। लेकिन डिपेंड अगेन, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका जीपीए मैटर करेगा, आपका आइट्स का स्कोर मैटर करेगा, आपका अगेन आपकी पब्लिकेशंस मैटर करती हैं। इफ़ यू डू हैव सेल्फ फंडेड के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो दैट वुड बी द डिफरेंट सिनेरियो, बट आई रियली डोंट नो अबाउट दैट प्रोसेस एज वेल कि उसका क्या तरीक़ेकार होता है या क्या नहीं है।
but One definitely it will impact. Yes. one more question कि सर मिनिमम कितना जीपीए एक्सेप्टेबल है मास्टर लेवल पे? देखें जितना अच्छा होगा उतना बेटर है। कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप तो आपने गुजारा नहीं करना। मैं आई थिंक अपने किसी दूसरे सेशन में भी ये चीज़ बता चुका हूँ सॉरी कि एक होता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑलवेज आस्क अबाउट दैट, सर मेरा इतना है तो गुजारा हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा, इस तरह के जो हैं वो बातें आती हैं। हमने गुजारा नहीं करना होता बेसिकली। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप यू आर competing with the thousands of people all around the world। वहाँ हमने गुजारा नहीं करना होता कि चल जाएगा, निज़ाम चल जाएगा। वहाँ आपने अपनी एप्लीकेशन को बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाना होता है। यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम दोस thousands of people। सो आपने इस हिसाब से देख लेना है। तो मिनिमम जीपीए डेफिनेटली इट शुड बी अबाउट 3.3 3.4, इससे ऊपर ही होना चाहिए स्पेसिफिकली। ओके सर, थैंक यू सो मच आसिम भाई। नो वरीज। Next, Pizza, you can unmute yourself. And then we have Aruba. I think she's not speaking. We can go Yeah, for next one. Aruba next. You can unmute yourself, Aruba. And then we have next, Sairash. Sorry. जी हाँ जी सर, मैं चूला से हूँ और मेरा अभी पेपर भी सेट हो गया, मेरी ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हो गई है, तो मुझे आपकी मेरी आवाज़ बहुत थोड़ी कम सी आ रही है, काइंडली थोड़ा सा अगर आप जी जी, आ रही है मेरा? हाँ बेहतर है, चलें सुनने की कोशिश करते हैं। गो ऑन। एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, जी बोलें। जी, क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी ऑल्दो आप कह रहे हैं कि 2 to 3 पब्लिकेशंस हों तो अच्छे चांसेस होते हैं, तो मैं अभी तो मास्टर्स वर्क ही मेरा पब्लिश हुआ है और कुछ रिव्यूज 2-3 हैं, लाइक वो हम्म बैचलर्स और वो जस्ट वो साइड बाय साइड में कुछ चीजें कर रही थी। हम्म तो मेरा एक तो मुझे आइट्स को लेकर थोड़ा सा फोबिया हो रहा है, क्योंकि मैंने सी टैप दिया था, वो चूला का अपना टेस्ट होता है, वो आइट्स और नहीं हाँ हाँ जी जी 3 ऑप्शन थी ना, सी टैप या आइट्स, तो वो उसकी फीस कम थी तो उस टाइम पे मैंने वो दे दिया। तो अभी मेरे पास वो है, तो मैं चाह रही थी कि मैं चीजें थोड़ी क्लैरिफाई करके चलूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मतलब मुझे चांस लेना है और मुझे फुल फ्रेश तैयारी के साथ लेना है। पेपर भी एक्सेप्ट हो गया लास्ट वीक, अब मेरी वो डिग्री बस इशू होने वाली है, तो बस अभी आइट्स वाला मुझे आपसे इशू पूछना था। और दूसरा क्वेश्चन ये था, मेरी डिग्री रिसर्च बेस्ड थी, तो मुझे आगे भी रिसर्च के लिए ही लाइक ज्यादा चांस लेना चाहिए, या फिर ये कोई होती है पीएचडी प्रेफरेंस? पीएचडी तो होती ही रिसर्च बेस ही है, उसमें थोड़े बहुत कोई कोर्स हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड मास्टर्स बाय रिसर्च और आगे वो पीएचडी में। पीएचडी तो ऑलमोस्ट सारी होती ही रिसर्च बेस है ना, तो उसमें आपको चूज करने का जी ऑप्शन जी ही जी, नहीं होता। और इंसान का वो टेम्परामेंट भी नहीं रहता ना कि रिसर्च इतनी टाइम 2-2.5 साल करने के बाद विदाउट कोर्स वर्क, तो फिर मैं इसीलिए चाही थी कि आप थोड़ा एनीवेज सा मुझे इस बारे में गाइड व्हाट करें। व्हाट अबाउट योर आइल्स इज दैट कि अगर आप चूला से हैं, आपका थाईलैंड से है मास्टर्स, तो डेफिनेटली इफ यू हैव अ पब्लिकेशंस तो आपकी मोस्टली यूनिवर्सिटीज में, अगर हाई रैंक यूनिवर्सिटीज में जाएंगी, इफ यू गो फॉर मोनाश, एएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ विच वन सिडनी, तो उनमें आपसे मांगेंगे डेफिनेटली। बट अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपका आइल्स वाइवर हो जाता है। बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप स्टार्ट करें अपना प्रोसेस ऑन द वे। इफ दे आस्क फॉर द आइल्स तो आपके जो है वो यू कैन प्रोवाइड देम, बट मोस्टली ये है कि आपको वाइवर कर देंगे। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो वरीज। जी कौन है नेक्स्ट? अपने हाथ नीचे कर लें जिन लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं, ताकि मैं आइडिया हो जाए कि हाउ मेनी पीपल आर रिमेनिंग। जी अरूबा, अगर आपका स्टिल अब नेट का इशू नहीं है, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपको बताइए। मेरी आवाज? अच्छा, सर मुझे ये पूछना था कि मेरी जीपीए जो है वो 3.38 है राइट नाउ, ठीक है, और मेरे बैचलर्स के बाद अराउंड 2 इयर्स का गैप है, और मैं मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ। हाउएवर, मैंने लैब वर्क किया है, रिसर्च वर्क किया है, बट इट इज़ नॉट पब्लिश। और क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कोविड के टाइम पे हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ रिसर्चेज में वॉलंटियर भी किया था, बट इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। तो मैं फिर इस
सिलसिले में क्या कर सकती हैं? इस सिलसिले में आप ये कर सकती हैं कि अच्छा प्रपोजल लिखें, आइल्स अच्छे से करें, अबाउ अबाउ 7 एट लीस्ट। उसके बाद आप अप्लाई करें स्कॉलरशिप्स के लिए। डेफिनेटली अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छा करें। जिन एरियाज में लैग कर रही हैं आप, उन एरियाज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बिकॉज इफ़ यू आर लैकिंग इन जीपीए तो अब उसको कवर किया जाता है पब्लिकेशंस के साथ, इंटर्नशिप्स के साथ, एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ, या आपने कोई वॉलंटियर वर्क जैसे आपने बताया है। बाकी है कि आइल्स से आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हो। याद रखिए, दोबारा इस क्वेश्चन को ना पूछने की कोशिश करें। मैं बता चुका हूँ, मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइल्स मस्ट चाहिए। पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जी तो जी आपका बहुत सारे केसेस में वाइवर ऑफ हो जाता है। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये पूछनी थी। अब फॉर एग्जांपल जो मैंने रिसर्च वर्क में वॉलंटियर किया है, लाइक अपने ग्रेजुएशन के दौरान, अब वो मेरे इफ पास इट्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इफ तो इट्स नॉट अगर मेरे डॉक्यूमेंटेड, पास। इट्स नॉट इफ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, देयर इज नो प्रूफ कि आपने वो किया है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कुछ करें उसको डॉक्यूमेंट्स की सूरत में पास रखें। आप कैसे उनको यकीन दिलाएंगे कि आपने किया है? जुबान से, तो मुंह सर से तो अगर बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं आपकी बात समझती हूँ, तो सर अगर मैं उनसे, जो डिपार्टमेंट हेड है, अगर उनसे मैं ये बात डॉक्यूमेंट करवा लूँ, लाइक कोई करवा पब्लिकेशन नहीं लें, होगी, बट करवा दैट लें। जी जी, करवा लें वो आप मैंने उससे। चेयरमैन के अंदर ही किया था काम। जी जी, आप उनसे ले लें डॉक्यूमेंट। दैट्स मतलब इसमें क्या पूछने वाली बात है? ले लें डॉक्यूमेंट्स, हमेशा ले लेना चाहिए जहाँ पे आपने काम किया। ठीक है, सही है। और सर आप कुछ बता रहे थे ओपन प्रोग्राम्स के बारे में, तो उसमें सर यानी अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पहले हमें प्रोफेसर्स को रीच आउट करना चाहिए एंड देन वी शुड अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। मास्टर्स के लिए लाजमी नहीं होता सुपरवाइजर को अप्रोच करना, बिकॉज देर आर सर्टेन स्कॉलरशिप्स जिनमें मास्टर्स में आपको सुपरवाइजर को अप्रोच नहीं करना होता। आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलियन अवार्ड एंड अदर स्कॉलरशिप्स एज वेल फॉर मास्टर्स। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च और सुपरवाइजर बेस्ड प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सुपरवाइजर को अप्रोच करना पड़ता है। बट डेफिनेटली फॉर पीएचडी एनी केस आपको सुपरवाइजर को अप्रोच करना होता है पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी। Next we have Chaudhry Shiraz Nadeem, and then after we have Aksa. Assalamualaikum, sir. I hope you're well. I'm doing my master's from Australia, and I have a IELTS score of around 8.5. और मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो व्हाट्स द वन टिप दैट यू कैन गिव कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हासिल करने के लिए कोई एक जो डेफिनेटिव टिप है वो कोई देता है कि क्या Well, करना चाहिए? the most important thing you can do right now is to focus on your masters first of all, and definitely you need to get the good scores in your masters. Along with that, you need to publish some of your work, and definitely that would help to get some of the research project which are currently going on in different universities. So I think the one tip for all of the student is to, if you're doing masters, try to publish your work एनीवेयर। मैं ये नहीं कहता कि आप Q1 में ही पब्लिश करें, बट डेफिनेटली इफ यू पब्लिश योर वर्क तो आपके पास, जैसे अभी आपसे पहले भी जो क्वेश्चन आया था कि मेरा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सो इफ यू डोंट हैव एनीथिंग डॉक्यूमेंटेड तो हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर डूइंग मास्टर्स एंड yeah, definitely focus on your GPA as well, and along with GPA, publications very important. जी, नेक्स्ट कौन है? Next Aksa, and then Afnan. जी, वालेकुम सलाम जी, एक सब बताइए। सर मैंने एक पहले बताना था आपको कि मेरी 3.9 सीजीपीए और मेरा मतलब एक रिसर्च आर्टिकल है पर ऑथर की, मतलब मेरा जो रिसर्च वाला था थीसिस। तो मैंने आपसे पूछना है कि जो ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लें कि जो प्रोफेसर होते हैं उनके इक्विपमेंट बड़े डिफरेंट होते हैं। जो हम पाकिस्तान में यूज करते हैं वो तो उससे हाई लेवल के बहुत होते हैं, तो हमने वो यूज नहीं किए होते। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट में लिखा होता है ना कुछ प्रोजेक्ट्स में कि आपको ये इक्विपमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो हम उसको कैसे आंसर कर सकते हैं और कवर लेटर्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाए? Well, that's very important question, and this is one of the very valid question. There are a lot of students who feel that, and uh, जब भी आप अपनी सीवी लिखें तो सीवी में एटलीस्ट आपकी फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कौन सी फील्ड है? सॉरी इफ आई कैन आस्क, आपकी कौन सी फील्ड है? आप किस एरिया में काम कर रही हैं?
सर मेरी फूड टेक्नोलॉजी टेक्निक है। ओके जी, फूड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं तो आपकी जो कैरेक्टराइजेशंस की टेक्निक्स हैं, या आपकी फॉर एग्जांपल जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे हम बात करेंगे आपने एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल, या आपने एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज एंड दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। अलोंग विद दैट जो बेसिक कैरेक्टराइजेशंस हैं, जैसे FTIR है, यूवी विज है, जैसे दो सोर्स ऑफ जो कि बहुत बेसिक टेक्निक्स हैं, वो आप मेंशन कर सकती हैं। और बाकी जो है वो आप जब भी आप ईमेल करेंगे तो आप उसमें कोशिश करें कि सुपरवाइजर ने अगर मेंशन की हैं 6 टेक्निक्स या 5 टेक्निक, तो उनमें से एटलीस्ट आप एक दो को मेंशन कर सकती हैं, और बाकी जो है वो आप कवर अप कर सकती हैं। बिकॉज इन ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली सुपरवाइजर डोंट एक्सपेक्ट दैट कि स्टूडेंट को सब कुछ आता है पहले से। दे कंसिडर PhDs एज अ ट्रेनिंग। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट रेलिवेंसी के लिए एक दो, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग TGA, DSC, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, FTIR, दो sorts ऑफ थिंग्स। तो उनमें से जो बेसिक्स हैं, जो सादी वाली हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। जो एडवांस वाली हैं वो आप लिख सकती हो, या आप कह सकती हो कि वाइल यू हैव इंटरव्यू के आप विलिंग टू लर्न। तो वो वैसे भी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं व्हेन यू स्टार्ट योर PhD इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे वो कभी हमसे एक्सपेक्ट नहीं पूछेंगे किया तो नहीं? नहीं वो हमसे पूछते, पूछेंगे नहीं, तो नहीं कि नहीं आपको ये पूछते। टेक्निक्स आती है नहीं आती? नई टेक्निक्स आपसे बेसिक टेक्निक्स डेफिनेटली वो पूछेंगे कि यस यूवी सर। आपको आनी चाहिए, FTIR आपको आनी चाहिए डाटा एनालिसिस के लिए। जो यस आपकी सर। बेसिक टेक्निक्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, वो तो आपको आनी चाहिए डेफिनेटली। बट जो एडवांस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी GCMS या GCFID या कहते हैं कि HPLC खुद नहीं रन किया क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं था, तो डेफिनेटली सुपरवाइजर जब आप यहाँ आएंगे तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है सारी उन इक्विपमेंट्स को रन करने के ओके। लिए। ओके सर। और सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ ईमेल जी। में जैसे आपने ईमेल का टेम्पलेट दिखाया था, तो उसमें हमने जो सुपरवाइजर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो हम हम्म। उसमें आइडिया अपना भी देंगे, जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम उसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसमें ऐसे और एडवांसमेंट कर सकते हैं। well, देखिए ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मैंने ईमेल के ऊपर कि ईमेल आपको रिफ्लेक्ट करता है कि यार आप कैसे बंदे हो। उसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखो जी, कि हेलो डियर प्रोफेसर। बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में अगर आप उनका फर्स्ट नाम डायरेक्टली लिखोगे, फॉर एग्जांपल हेलो कैथरीन, हेलो भी ना लिख लें, डियर कैथरीन लिख लें, ठीक है जी। हाय ना लिखें, हाय हेलो जो पहली दफ़ा सॉरी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप लिख सकते हो डियर कैथरीन, डियर कर्टस, डियर एंगस, डियर थियो, डियर एनीवन, मतलब जैसे भी कोई भी है, ठीक है जी। आप उसका फर्स्ट नाम लिख के आप उसको ईमेल लिख सकते हो। आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना कि डियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद, मतलब वो जैसे हम पूरा एक पाकिस्तानी स्टाइल में लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर लिया होगा, दोबारा से क्या एक्सप्लेन करना बार बार। अपना नाम लिखें, व्हाट यू प्रीवियसली डिड वो लिखें, एंड देन सुपरवाइजर को कभी ये मत मत बताएं कि वो आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई योर वर्क विच इज करंटली गोइंग ऑन इन योर लैब, एंड आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई द कटिंग एज विच इज नहीं। सुपरवाइजर को वो मत बताएं, उसको पता है कि मेरी लैब में क्या हो रहा है। जब आप उसको ये बताते हैं कि जी मैं तो बड़ा आना, आपने सिंपली उसको बताना है जी कि आई वाज सर्चिंग फॉर PhD और मैंने मास्टर्स कंप्लीट की है, सो आई वाज रीडिंग योर वर्क। तो मैंने रीड करते हुए जो है वो ये पेपर पढ़ा, उसमें ये चीज़ थी। एक दो पेपर्स का दे दें। या प्रोजेक्ट पढ़ा है तो प्रोजेक्ट में ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी है और मुझे ये मेरे इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा मैच करती है। और आई बिलीव कि मेरी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड है, वो इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल होगा कि मैं इस एरिया में जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। इतनी सी बात अपने उसको बावर करवानी है कि मेरा प्रीवियस और आप जो है वो मतलब अभी का और प्रीवियस का काम जो है वो मैच करता है, देन आई कैन कंट्रीब्यूट। आपने अगर उसको ये यकीन दिला दिया, दैट्स इनफ। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। नो, थैंक यू। नो वरीज जी। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? Next, Afnan Mateen, and then when next we have Rana Fahad. Afnan Mateen, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बताइए जी अफनान। जी सर, मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना था कि एक स्टूडेंट जो है जिसकी जो सीजीपी अगर एक लो सीजीपी वाला, वो भी क्या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं जिसकी अभी मैंने सीजीपी इसका अगर आंसर कम? आंसर किया है मैंने अभी इसका ना, थोड़ी देर पहले अगर आप सुन रहे थे तो मैंने इसका आंसर कर लिया है अबाउट द GPA। आई थिंक 3-4 दफा मैं बता चुका हूँ इस बारे में।
तो सर अगर हम आप एक काइंडली बता देते कि एक अच्छा डिटेल चलो मैं बता में ना। देता हूँ। मैं फिर बता देता हूँ। लो जीपीए अगर है तो आपने उसको कवर करना है। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है, अगर आपने उसको कवर करना है तो अपने आइल्स का अच्छा स्कोर लें, उसके बाद अच्छा प्रपोजल लिखें, कोई इंटर्नशिप कर लें, ये सारी चीज़ें करके अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसके बाद अप्लाई। खाली अगर आपका जीपीए भी लो है, ऊपर से आपके पास आइल्स भी नहीं है, ऊपर से आपके पास प्रपोजल भी नहीं है, आपकी सीवी भी अच्छी नहीं बनी हुई, आपके बाकी सॉरी डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे नहीं है, देन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टैंड आउट करेगी हज़ारों के हिसाब जो स्टूडेंट्स हैं और पता नहीं कितने सौ मुल्कों में से। देखना, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर सो मेनी कंट्रीज, तो पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जी सर, मेरा दूसरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रिसेंट जो जो महीने पहले बात सुनने में है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की जो लिमिट कर रहे हैं इनकी तादाद को, क्या उसका इम्पैक्ट होगा कि जो आप अप्लाई करेंगे तो उनके हाँ जी, उतना ही उनको डेफिनेटली। अभी टारगेट। अभी सुना है इस बारे में। मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ न्यूज़ ऑन दैट और एनी काइंड ऑफ कमेंट बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली मैंने भी सुना है अभी तक। तो अगर इस तरह का सीन होता है तो डेफिनेटली इम्पेक्ट होगा। बट आप जो सर है वो उनकी पूछ वेबसाइट, जो पूछने का ऑफिशियल मेरा वेबसाइट, पूछने का ऑफिशियल मेरा ये वेबसाइट। मतलब कि वो गवर्नमेंट जो कि वो यूनिवर्सिटीज को टारगेट भी तो देगी कि आपने इतने स्टूडेंट्स को अपने रखना है अपनी यूनिवर्सिटीज में, आपने इतने करने, वो उतने उस हिसाब से देंगे और उतना वो अपने ऐसा ही पास है, ऑफर लेटर भी होगी। ऐसा ही है, जी सर। ऐसा ही है, जी एग्जैक्टली सर, ऐसा ही थैंक यू सर। थैंक यू है। सर। नो वरीज, नो वरीज। ओके जी, नेक्स्ट कौन है हमारे The पास? next we राना have is Rana Fahad. Please unmute जी। yourself. अस्सलाम वालेकुम। Kindly, sorry, I want to interrupt. Kindly जो लोगों के questions already answer हो गए हैं, आप अपने hand lower कर लें ताकि जो है वो, क्योंकि सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिम भाई का भी टाइम इंपॉर्टेंट है और जितने पार्टिसिपेंट वेट कर रहे हैं सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। काइंडली वो और क्वेश्चन काइंडली, अपने हाँ करें। जी जी। जी एंड वन मोर रिक्वेस्ट, सॉरी हमजा आपको इंटरप्ट किया मैंने। जी जी। वन मोर रिक्वेस्ट इज कि आपने क्वेश्चन को शॉर्ट रखें और अगर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो चुका है तो उसको दोबारा काइंडली मत पूछें। और शॉर्ट रखें, अपनी हिस्ट्री मत बताएं कि मैंने ये किया था वो किया था, और वो मतलब उसकी नहीं ज़रूरत है। टू द पॉइंट आंसर आप क्वेश्चन करें। आई विल ट्राई टू आंसर टू द पॉइंट, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। जी फहद भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग फॉर पीएचडी जब रिसर्च करते हैं हमारी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। तो ये कोई कंपलसरी है कि हमारी यानी कि लाइक पब्लिकेशन रिसर्च आर्टिकल्स में हो या रिव्यू में हो या किसी भी एरिया में हो तो वो मैटर करेगी, लाइक कॉन्फ्रेंसेस में या बुक चैप्टर्स लाइक। देखें, ऐसे रैंडम पेपर्स का तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता कि अगर आपने किसी को कहा, या फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, चाइना का भी है बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस का, कि मेरा नाम उसमें डाल देना या इधर डाल देना उधर डाल देना। लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिसर्च पब्लिकेशंस का इम्पैक्ट तो पड़ता है। बट इफ़ यू ओनली हैव लाइक अ थर्ड ऑथर, फोर्थ ऑथर, फिफ्थ ऑथर पेपर्स, और आपका कोई फर्स्ट ऑथर पेपर नहीं है अपनी रिसर्च से रिलेटेड, और अच्छा पेपर नहीं है, तो वो फिर उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता जो आपके एक फर्स्ट ऑथर पेपर का या आपके अपने काम का होता है। तो इसलिए ये है कि फोकस करें कि आपका अपना रिसर्च आर्टिकल हो एक दो, और उसके बाद एडिशनली अगर आपके हैं तो वो डेफिनेटली फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। सर जैसे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं उसमें भी ये मैटर करती है आपकी पब्लिकेशन एज अ फर्स्ट ऑथर। देखें, करती तो है ना किसी भी प्लेटफॉर्म में, बट डेफिनेटली इम्पैक्ट फैक्टर क्वालिटी जर्नल्स जैसे, इसीलिए तो नहीं देखे क्वालिटी जर्नल्स Q1 Q2 Q3 Q4, या फिर नेचर है, जैक है, तो क्यों नाम रखे गए हैं? इसी वजह से कि बिकॉज देयर क्वालिटी इज हाई। तो अगर किसी का पेपर नेचर में है और किसी का पेपर एल्सवेयर के किसी जर्नल में है, तो नेचर वाले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्सवेयर के। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने पेपर कहाँ पे पब्लिश किया है। बट डेफिनेटली आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स के, अगर आप अपना पेपर कहीं नहीं पब्लिश कर सकते तो फिर लोग रैंक जर्नल में सॉरी पब्लिश कर दें। बट इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि कंसिडर करें कि आपका पेपर अच्छी जगह पे पब्लिश हो। और सेकंड सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं इसको मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अगर एक पर्सन की रिसर्च लाइक किसी एक स्पेसिफिक एरिया में है, किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल में फॉर एग्जांपल, देन वो पीएचडी में अगर अपनी रिसर्च मूव करना चाह रहा है किसी डेयरी वाली साइड के ऊपर, तो अगर वो कन्विंस कर पाए अपने सुपरवाइजर को तो देन वो मूव कर सकता है रिसर्च। सर कर पाते हैं अगर, तो आपको ये भी इजाज़त है कि अगर आपने पीछे केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आगे अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं, या पीछे फिजिक्स पढ़ी हुई है तो अगर आप आगे आके जो है वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप आपको मना नहीं करता। ये सिर्फ हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो आपको खुली आज़ादी है, आप किसी भी जो है वो फील्ड में जा सकते हैं यहाँ पे। नो वरीज। थैंक यू सर। नो थैंक यू। वरीज।
Next Waqas Sahar, and then we have next Muhammad Munib. सर। जी जी, वालेकुम मेरे सलाम वकास, मैं सुन सकता हूँ आपको, बताइए। सर मैं एक क्वेश्चन सर जो मैंने अंडर ग्रेजुएट में प्रोजेक्ट किया था अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में सर, तो सॉरी, सर आपको मैं समझ नहीं सक रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, थोड़ा आहिस्ता अगर आप बोलें। जी सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ जी, आवाज़ आ रही है, थोड़ी स्पीड अपनी कम करें तो मैं समझ जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा। जी बताइए। सर जो अंडर ग्रेजुएट में मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था उस पर सर मैंने हम्म। रिसर्च किया था, तो क्या मैं उसको एमएस के लिए फर्दर मतलब प्रपोजल वो सेंड करूँ, या मैं एक नई प्रपोजल बनाऊंगा और वो जो है प्रोफेसर को सेंड करूंगा? मेरी ये क्वेरी है सर। देखिए, डिपेंड करता है, अगर आपका प्रीवियस वर्क के ऊपर आप उसको एक्सटेंड करके प्रपोजल बना सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज यू डू हैव सम बैकग्राउंड इन दैट एरिया, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ proposal. But definitely if you want to move to the न्यू एरिया, अगर आप नए एरिया में काम करना चाहते हैं तो प्रपोजल आप बना के भेज सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके जी सर, प्रोफेसर को हम वही भेजेंगे जिसकी फर्दर हम काम करेंगे। जी जी, ऐसा ही है, हाँ जी। ओके। और सर एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि इंजीनियरिंग के लिए कोई प्रेफर्ड स्कॉलरशिप है ऑस्ट्रेलिया में, या बस जनरल स्कॉलरशिप के लिए हमें अप्लाई करनी होगी? देखें, जर्नल हैं स्कॉलरशिप, स्पेसिफिकली मास्टर्स के लिए हैं, तो आपकी जर्नल स्कॉलरशिप्स होते हैं, फिर उसमें कुछ सीट्स होती हैं, उस हिसाब से होते हैं। आप सर्च कीजिए कि मास्टर्स के कौन से स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि फेमस ऑस्ट्रेलियन अवार्ड है, और इंजीनियरिंग दूसरा की मैंने लिए। आपको, नहीं, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें, प्रोजेक्ट तो होते ही हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, फैकल्टी के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको वो सर्च करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि गूगल खोलें, गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वहाँ पे लिखें, अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट लिखें, तो आपको आ जाएंगे सामने खुले। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज, अगर सर मैं इस तरह करूँ सर कि जो मेरा जो मैंने अंडर ग्रेजुएट में काम किया है, अगर उसको मैं पेपर पब्लिश कर दूं और फर्दर उस पर काम करूं एमएस में, जी जी, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है सर? कोई कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली इसमें क्या इशू होगा, आप मुझे बताएं, कोई इशू मतलब नहीं सर है। उस पर मैंने ऑलरेडी काम किया है ना, मैंने उस पर सर थीसिस हाँ, सबमिट किया है, सारा कुछ किया है अंडर ग्रेजुएट में। नहीं, अगर आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं तो करें ना पेपर, और उसके बाद उस काम को एक्सटेंड करें ना आगे, उसी के ऊपर तो आपने नहीं दोबारा काम करना ना, वो काम एक्सटेंड होगा, उसमें आप नई चीज कोई निकालें ना, नई चीज करेंगे डेफिनेटली, तभी वो नॉवल होगा। अगर नोवेल्टी नहीं होती है तो फिर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नो वरीज। जी, नेक्स्ट कौन है हमारे मोहम्मद पास? मुनीब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुनीब बताइए। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं आपसे। एक तो आइल्स का जो वेवर है वो कौन सी यूनिवर्सिटीज दे रही है पीएचडी प्रोग्राम के लिए? स्पेशली हम्म, मैं पीएचडी अप्लाई करना चाह रहा हूँ सर। और ठीक हो सेकंड गया। मेरा क्वेश्चन है कि पीएचडी जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो व्हाट डज इट मीन, कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो कवर हो जाती है? और थर्ड मेरा है कि पीएचडी के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी और पीआर, इसको इसके हवाले से क्या पर्सपेक्टिव है वहाँ पे सर? वेल, Estate- पीआर और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ माय पीएचडी, तो मैं उसको आंसर नहीं करूंगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कौन सी यूनिवर्सिटीज वाइवर देती हैं, तो वो भी अगेन आपको देखना पड़ेगा आफ्टर डिस्कशन विद योर सुपरवाइजर, कि उसके बाद आप, और आई वुड से कि अगर आपकी पब्लिकेशंस अच्छी हैं और आपका क्या कहते हैं प्रपोजल अच्छा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी भी देता है, लेकिन आपने उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, आपने ईमेल करना पड़ता है सुपरवाइजर्स को, उसके बाद आपका जो एरिया का, एशिया का जो मैनेजर है, उसको मैंने किया था बेसिकली, तो वहां से मुझे वाइवर मिला था व्हेन while I applied for the Sydney। तो यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया डेफिनेटली यू टेस्ट जो है वो आपको दे देगी, फी सॉरी आइल्स का वाइवर दे देगी, अगर आपका जो है वो सर प्रीवियस आपका मतलब इंग्लिश में। आपने इसमें किया था ना, सिडनी में मेरा मेजर है, मेरा बेसिकली एनिमल, सॉरी सर, मैं ये कह रहा था कि मेरा एनिमल साइंस ही आता है, सिडनी के अंदर मेरा प्रोग्राम है। हाँ, प्रोग्राम्स जो है वो मैटर नहीं करता, असल में जो आपकी रिसर्च है, सुपरवाइजर है, वो मैटर करता है, तो उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे। उसके अलावा जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप ट्राई करें सारी की सारी, और जब आपकी सुपरवाइजर से डिस्कशन हो जाएगी उसके बाद वो आपसे आपके रिसर्च मांगेंगे प्रीवियसली, उसके बाद वो आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वट एवर या इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका वाइवर मिलता है या नहीं मिलता। मैं पहले से आपको नहीं बता सकता कि कौन सी यूनिवर्सिटी देगी। मतलब ये है कि बाज़ों का जो है वो बाज़ स्टूडेंट से सारी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, बाद से नहीं मांगती, तो इट्स डिपेंड ऑन प्रोफाइल टू प्रोफाइल, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल। या सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो पीएचडी फुली फंडेड, तो उसमें जो है वो किस फॉर्म में होती है, अवार्ड्स की फॉर्म में होती है
किस तरह से हमें पता चलता है, या फंडेड प्रोजेक्ट की फॉर्म में होती है कि जिसमें सारी चीजें कवर होती है? सारी चीज़ें आरटीपी में कवर होती हैं आपकी। इसके अलावा बस सुपरवाइजर बेस्ड प्रोजेक्ट है तो उसमें इंश्योरेंस आपको खुद पे करनी होती है, और बाकी चीज़ें आपकी सारी कवर होती हैं। आपका एयर टिकट कवर होता है, आपको सैलरी मिलती है मंथली, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको फ़ी नहीं देनी पड़ती। आपकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो हैं वो कवर होती हैं, आपकी लैब इक्विपमेंट्स, आपकी ऑफिस मिलता है, आपको लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह मिलता है, सेटअप सारा मिलता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसमें। पीएचडी का ड्यूरेशन सर कुछ है भी सही कि 3 से 4 ईयर जो मिनिमम है, मतलब कि जी मैक्स? यही है, यही है, यही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। No worries. जी नेक्स्ट जामी है कौन है? Same like this. सॉरी, Zami and सॉरी इफ आई Zain. सॉरी इफ आई Yeah. मिसप्रोनाउंस या। Are you able to unmute you? What the name is? Otherwise, next we have Sonia Iqbal. अस्सलाम सर, आवाज आ रही? जी वालेकुम सलाम जी, आ रही है आवाज़, आप बोलें। सर ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है और हाँ टीचिंग जी, एक्सपीरियंस है 3-4 साल का यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक हो बेसिकली गया। गोल ये है कि यहाँ से निकलना है। तो ये है कि कुछ टीचिंग असिस्टेंट टाइप की जॉब है, टीचर असिस्टेंट्स की, मतलब जो हम ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है जो आपकी फीस कवर कर दें साथ, इस टाइप की स्कॉलरशिप्स नहीं अगर देखें, है तो अगर आप क्या? सेल्फ फंडेड पे आना चाहते हैं तो उसका एज सच मुझे नहीं आइडिया कि कैसे करते हैं स्टूडेंट, बट व्हाट आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डू पार्ट टाइम जॉब्स, और उसके वजह से वो कवर कर लेते हैं फीस वगैरह। बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्कॉलरशिप, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टीचिंग असिस्टेंट्स आंसर की एनी। स्कॉलरशिप्स भी कुछ टीचर्स देते हैं यहाँ सर पे, नो, नहीं है कल्चर? नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन स्कॉलरशिप, सो मुझे आइडिया नहीं है जॉब्स मार्केट के हवाले से या जॉब कैसे लेते हैं। मेरे पास अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता इस बारे में। ठीक है सर। Next, Sonia Iqbal. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, बताइए सोनिया। सर मेरा बैचलर में 3.93 सीजीपी है और आइल्स के बैंड स्कोर है 6.5। मैंने थीसिस किया है बट पब्लिश नहीं हुआ, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो मैंने ये पूछना था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चांसेस है मेरी स्कॉलरशिप के? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अप्लाई करें। आपके पास आइल्स भी है, डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव योर आइल्स। अगर 6 है तो कोशिश करें इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड, या फिर आप दूसरा मैंने जो आपके साथ जो स्लाइड में शेयर किया था, लेटर ऑन आई विल ट्राई टू शेयर दैट अगेन इन द चैट बॉक्स एज वेल। तो उसमें डेफिनेटली कंसिडर होता है आपका जीपीए माशाल्लाह से अच्छा है इफ़ यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट, एंड अगर आइल्स भी आपका अच्छा होगा तो अगर उसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल रिक्वायर है तो अच्छा प्रपोजल अगर आप लिख लेती हैं तो चांसेस आर क्वाइट गुड। यस। ओके सर, और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि सर किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन मैंडेटरी है या फिर हम उसके बगैर भी कर सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, और डायरेक्टली अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रही हैं तो बाज़ स्कॉलरशिप्स आपसे कहते हैं कि आप उसको नोटराइज वगैरह करवा लें, या आप उसको जो है वो फॉरेन ऑफिस से या फिर एचएससी वगैरह से करवा लें। तो आई ऑलवेज रेकमेंड स्टूडेंट्स के अगर आपने बाहर का इरादा कर लिया है तो हासिल करने से बहुत बेहतर होता है, लाइफ में कभी ना कभी तो वो आपको काम आएंगे। इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी अटेस्ट करवा लें आईबीसीसी से, एचएससी से, ताकि आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी अगर ऑन द वे आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है तो आपको ख्वारी ना काटनी पड़े। डॉक्यूमेंट्स अपने हमेशा से कंप्लीट रखें। उसके बाद ये है कि ऑन द वे जो है वो आप अप्लाई करते ही रहते हैं, क्योंकि कल को अगर आपने जॉब करनी है तब भी अटेस्ट तो करवाने ही ना, तो आज ही करवा लें। वेट किस चीज़ का कर। जी, हु इज द नेक्स्ट वन? Next, Neelam Mahal. Then we have Zainab. सर मैंने ये पूछना था कि स्टूडेंट वीजा वीजा पे जब हम लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बाद अगर हम पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक में फर्दर परस्यू कर लें अपनी स्टडीज को, तो पीआर मिलने के चांसेस होते हैं या स्टूडेंट वीजा पे वापस आना होता है पाकिस्तान? नहीं, आपको आगे पोस्ट वर्क परमिट मिलता है पीएचडी के बाद, आई बिलीव 3 साल का शायद मिलता है। तो वो 3 साल तो आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, जॉब तलाश कर सकते हैं, रह सकते हैं। उसके बाद या पीएचडी का आपका 4-5 साल का वीज़ा होता है, देन यू हैव लाइक 3 to 4 years आई थिंक मोर। तो टोटल आपका 8-9 साल का ही होता है, और मेन टाइम अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप वो पीआर और वो वाली सीन, तो अभी उसके बारे में तो खैर वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट। बट या पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू पीएचडी के ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है।
और अगर आप लकी इनफ हैं, अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल भी जाती है पोस्ट डॉक. सो इट्स टोटली डिपेंड, बट या दैट्स द सिनेरियो. Okay, sir. Thank you. No worries. Who's the Next we next one? have is Zainab, then Atiq Rashid. Ji Zainab, otherwise Atiq Rashid, you can unmute yourself. जी अतीक. सर कैन यू हियर मी? अस्सलाम जी वालेकुम. मैं जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सुन सकता हूँ, बताइए. जी सर, मेरा एमफिल है बायोकेमिस्ट्री में, और लेकिन मेरी पब्लिकेशन नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरी स्कॉलरशिप पे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया देखिए में? पब्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए. व्हेन एवर आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया आई ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग इज पब्लिकेशन एंड सेकंड थिंग इज दैट हाउ यू अप्रोच योर सुपरवाइजर्स. ये दो चीज़ें अगर आप जानते हैं आपके पास, तो आपके चांसेस इवेंचुअली उड़ के ना अचानक से फौरन आपके 60-70% पे चले जाते हैं. बट इफ़ यू डोंट हैव अ पब्लिकेशंस तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू कन्विंस सुपरवाइजर्स. बाकी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप ईमेल स्टार्ट करती हैं, कस्टमाइज ईमेल करें, वर्क करें. जैसे मैंने आपको बिग स्टूडेंट की एग्जांपल दिखाई, उन स्टूडेंट्स के साथ मैंने सिर्फ 12 दिन काम किया बिकॉज शी वाज सो मच पैशनेटेड एंड शी वाज सो हार्ड वर्किंग. दैट्स व्हाई आई इन्वेस्ट सो मच टाइम, बिकॉज मुझे लग गया था कि यार ये बहुत मेहनती स्टूडेंट है. सो शी वर्क ऑन दैट, और उसके बाद उसने ईमेल किया तो उनको रिस्पॉन्स फौरन आ गया. तो अब वो उन्होंने सर प्रपोजल सबमिट करवाया है कल. लेट्स सी. ओके सर, दूसरा ये कि मेरी पब्लिकेशन नहीं है लेकिन मैं पेटेंट पे काम कर रही हूँ, उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है, तो सर ये बेहतर है? पेटेंट हो जाए तो फिर तो जबरदस्त हो जाएगा. फिर तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं. ओके पेटेंट इज समथिंग वेरी गुड. जी. ओके, थैंक यू सर. जी जी. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. जी अतीक बताइए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मेरा 7वां सेमेस्टर चल रहा है और मैं स्कॉलरशिप के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ. तो मेरी पब्लिकेशन जो है वो सबमिट तो हो चुकी हैं, बट एक एक दो जर्नल से रिजेक्ट हुआ हूँ. बट पब्लिकेशन अभी तक हुई नहीं है, जिसमें चैप्टर और 2 आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल है. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पब्लिकेशन इन केस अगर नहीं भी सबमिट हो पब्लिश होती, तो मैं इनको किस तरह मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने ये ट्राई किया है, या कुछ इसका एज हो सकता है? जी जी, अपने दूसरा सीवी में आप मेंशन कर सकते हैं सबमिटेड, अंडर रिव्यू या इन प्रोसेस. इस तरह करके आप कर सकते हो, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा होता है. अच्छा, अभी अभी मुझे ये एक चैट में मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं. नवल फातिमा ने अभी बताया है कि ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है. आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, तो ये देख लीजिएगा उसका वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप, मास्टर्स के लिए स्पेसिफिकली. इट इज़ हाईली प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप, सो यू नीड टू कंसिडर दोज थिंग्स एज वेल. सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में सोशली वर्क हम करते हैं, एनजीओज वगैरह ज्वाइन करते हैं, सोसाइटीज में वर्क करते हैं, उसके सर्टिफिकेट्स काफी मेरे पास, मतलब और मेरे पास ऑलमोस्ट 20 हैं सर्टिफिकेट्स उसके. तो क्या वो हमारी स्कॉलरशिप फंड करने के लिए हमें हेल्पफुल रोल प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बस एडिशनल चीज़ एडिशनली होती है. आपकी बेसिक चीज़ें तो वो होंगी जो आपकी रेलिवेंट होंगी, तो वो एडिशनल प्लस पॉइंट हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ योर सिलेक्शन. हाँ, एडिशनल अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है तो वो एडिशनली आपको जो है सपोर्ट कर सकते हैं, नॉट एज अ बेसिक. आप उसको यूज़ करके बेसिक आप नहीं बता सकते कि मेरे पास ये है तो इसकी बेस पे मुझे स्कॉलरशिप मिले. ओके सर, शुक्रिया. नो वरीज. जी नेक्स्ट कौन है हमारे पास? सॉरी. जी नेक्स्ट कौन है हमारे पास? सैमसंग SM S9 समथिंग. अस्सलाम वालेकुम. जी जी बताइए. सर मैं मुझे ये पूछना था कि 5 to 6 ईयर के गैप क्या आप उसको जॉब से कवर कर सकते हैं पीएचडी के लिए? और सेकेंडली मेरा जो आइल्स है वो एक्सपायर हो चुका है, तो क्या उसको बिल्कुल कहीं पे लिखे ही ना कि मेरे पास नहीं है, वो करना बेहतर है, या फिर ये एक्सपायर्ड आइल्स के साथ भी परस्यू कर सकते हैं? नहीं, एक्सपायर हो गया तो आप कैसे लिख सकती हैं उसको? वो एक्सपायर है हाँ. क्योंकि उसकी वैलिडिटी है, तो एक्सपायर हो गया. एक्सपायर हो गया मीन फिनिश हो गया. आपको दोबारा देना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू. और एक्सपीरियंस डेफिनेटली अगर आपके पास जॉब है तो आप क्यों नहीं कवर कर सकते वो, बल्कि एक अच्छी चीज़ काउंट होती है कि अ पर्सन हैव अ जॉब एक्सपीरियंस एंड नाउ ही वांट टू परस्यू हिज पीएचडी. बट डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन कि हाउ यू परस्यू
how you approach supervisor, how you develop your proposal, and those sorts of things. So yeah, sure, that's very ओके और important. ओके सर, Yeah. थैंक यू। और मैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया पे देख रही थी कि प्रोफेसर्स ने कुछ मतलब डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स किए हुए थे और उसके लिए पूरा रेलिवेंट मतलब कि आप सीवी और एक वन पीडीएफ में जो है ना वो सबमिट करवाएं। तो उससे पहले तो ईमेल जरूरी नहीं होती ना, फिर आप उस प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट जो भी एप्लीकेशन उन्होंने प्रोसेस बताया होता है उसके थ्रू आप जस्ट एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो वो कंसिडर कर लेंगे। उससे तो फिर हमें प्रोफेसर को अलग से Yes. ईमेल करने की जरूरत नहीं है। Yes, definitely. If the project is already there, then you need to write the email according to the project. Okay, I'm interested in that kind of project. So you don't need to like, you know, but definitely in that case, you also need to, uh, relevance is very important. What I previously mentioned is that कि आपकी जो previous relevancy है आपके current project के साथ, that is very ओके, थैंक यू सो मच सर। important. No worries. Yeah. G, next. Who is next? अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम जी, बताइए। हाँ जी, मैंने बीएस एग्रीकल्चर की है, मेजर एग्रोनॉमी में। इसी ईयर में कंप्लीट हुई है मेरी। मेरी 3.08 सीजीपी है। और सर जी मैं स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया के लिए करना, इसके लिए क्या कर सक। If you're lacking in one area, you need to cover with another area. So that's that actually the strategy to improve your application and chances. Yeah. Gee, who is the next one? Is there anyone else? Gee, कौन है Sorry, next? very sorry for my side. Next is Atiq Rashid. Atiq Rashid. सर Okay, मेरा next ऑलरेडी one. हो चुका है। जी उनका हो गया, अपना हाथ Okay, नीचे okay. कर दें। You need to, जी yeah, raise down your hands. अभी तक ही खड़ा है next ना वो, हैंग हो गया उधर। Sundus सर Abbas. हाँ जी, कौन है जी? जी सुंदस बताइए। Sundus Abbas. अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है कि मैंने मास्टर्स अभी मेरा सितंबर में एंड हो जाएगा वाइवा के बाद, और मैंने अपनी मास्टर्स के साथ साथ जॉब एक्सपीरियंस भी है। मैंने जॉब और जो एकेडमिक है दोनों चीज़ें साथ साथ की हैं, तो क्या ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट करेगा या कि नेगेटिव? और मैं नहीं अपनी ठीक है, सीवी में, अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात है अगर आपने जॉब की है साथ में। हाँ, तो और पॉजिटिव ही मेरी जाएगा। सीवी हाँ। इससे पहले मेरे पास लैब का एक्सपीरियंस भी है, मैंने एचईसी के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और मेरी पब्लिकेशन भी है, लेकिन सिर्फ एक पब्लिकेशन है रिव्यू आर्टिकल में एज अ सेकंड ऑथर 4.3 इम्पैक्ट फैक्टर के साथ। और मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में ही अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी सीवी के अंदर ईयर वाइज ही इसको कैटेगराइज करूँ, या कि वर्क एक्सपीरियंस जो मेरा प्रोफेशनल है उसे अलहदा कैटेगराइज करूँ और जो मेरा लैब का एक्सपीरियंस है उसे अलहदा कैटेगराइज करूँ? देखें, जब आप सीवी डेवलप करेंगी डेफिनेटली अपनी एजुकेशन को पहले मेंशन करें। उसके बाद जो आपकी हाईली रेलिवेंट है ना, जैसे आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस है दैट इज हाईली रेलिवेंट, तो उसको पहले करें। उसके बाद जो आपका लेस रेलिवेंट है उसको उसके बाद करें, नीचे करें। एंड डोंट नीड टू ऐड एवरी सिंगल थिंग। अगर आपका बहुत ज़्यादा 5 6 7 8 जॉब्स हैं डिफरेंट, आपने थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट किए हैं, तो ओनली ऐड दोज थिंग्स विच आर हाईली रेलिवेंट टू योर फ्यूचर गोल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लाइक 6 पब्लिकेशंस, तो मुझे वो 6 की 6 नहीं ऐड करनी सीवी में, मुझे उनमें से चुन के 3 ऐड करनी है जो कि हाईली रेलिवेंट हूँ और हाई इम्पैक्ट फैक्टर की हूँ। सो दैट्स द स्ट्रेटजी टू डू थिंग्स। या ओके, थैंक यू सो मच सर। नो वरीज।
जी, who is next? नेक्स्ट वी हैव फिजा, और अगर फिजा का क्वेश्चन हो गया तो देन वी हैव असद। Who is the जी, next one? फिजा या असद? अस्सलाम वालेकुम सर। जी फिजा बताइए। वालेकुम जी सलाम। सर, अभी जो है मैं करंटली इन 7th सेमेस्टर हूँ और मेरी जो डिग्री है वो बैचलर्स जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटाटिक्स में है। तो सर मैंने पूछना ये था कि जो हमारी सीवी है वो मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है हम उसको फुल डिटेल में लिख सकते हैं या बिल्कुल टू द पॉइंट हमने सीवी को रखना होता है? और दूसरी देखिए, सॉरी, हाँ जी बताइए। जी और दूसरी चीज़ ये कि हमारे बैचलर्स लेवल पे जो वो पब्लिकेशंस नहीं होती, तो हम लोग कहाँ से जो है वो चांस ले सकते हैं अपनी जो है आर्टिकल या कोई इस तरह का रिसर्च वर्क जो है हम अपना पब्लिश कर सकें? देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि सॉरी मैं पहला क्वेश्चन ही भूल गया हूँ जी। पहला क्वेश्चन क्या था? हाँ सीवी, सॉरी, ठीक है। हाँ सीवी में जो वर्क एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना होता है तो वो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना होता। डेफिनेटली आपने उसकी हेडिंग ही देनी होती है। सीवी आई बिलीव कि आप अगर किसी भी गूगल में भी आप देख लीजिए, लेकिन आपने वर्क सीवी नहीं देखनी है, आपने एकेडमिक सीवी देखनी है। उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे लोगों ने अपना प्रोजेक्ट मेंशन किया होता है और प्रोजेक्ट की लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन जो है वो दी होती है, नॉट टू मच। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के अंडर काम किया है तो यू कैन पुट द टाइटल ऑफ योर रोल, व्हाट एग्जैक्टली यू डिड देयर, एंड उसके बाद आपकी जो जॉब थी उसकी 2 से 3 सेंटेंस में आप उसकी समरी बता सकती हैं, एंड देन योर सुपरवाइजर किसके अंडर की है उनका नाम लिख सकते हैं या उनका ईमेल लिख सकते हैं। सो दैट्स द ओनली थिंग। और सेकंड आपका क्या क्वेश्चन था? सॉरी। लेकिन मेरा ना पब्लिकेशन से रिलेटेड था कि मेरे बैचलर्स में कोई हाँ जी, पब्लिकेशन। सॉरी। हाँ, पब्लिकेशन ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बीएस के स्टूडेंट हैं तो आई ऑलवेज रेकमेंड बीएस स्टूडेंट के फाइनल ईयर के अंदर कोशिश करें कि अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी सुपरवाइजर के अंडर रह के कोई प्रोजेक्ट करके जो है वो उसको ट्राई टू पब्लिश समवेयर विद योर सुपरवाइजर, विद योर टीचर, एनीवन जो भी इंटरेस्टेड हो उसके साथ। जी जी सर, एक्चुअली मेरी वन मोर थिंग ये थी कि हम एक प्रोफेसर को कितनी ईमेल्स कर सकते हैं? ऑब्वियसली कि वो भी इरिटेट हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स बार-बार मुझे ईमेल नहीं करें। तो हमें एक बस एक प्रोफेसर। से ज्यादा नहीं करनी होती, एक करनी होती है आपने प्रॉपर ईमेल, एंड देन यू कैन सेंड द रिमाइंडर आफ्टर 1 वीक जी या 7-8 दिन के बाद। और अगर रिमाइंडर के बाद रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपने मजीद ईमेल नहीं करनी उसको ठीक होगा। और कभी भी। सर मेरा ना एक प्रोजेक्ट है, मैंने किया था एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट मैंने बनाया है अपनी एक स्टमक एसिडिटी से रिलेटेड हर्बल टी। तो सर उसको हम उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, इंशाल्लाह उसको मैंने हाँ जी, रजिस्टर भी करवा लेना हाँ है। जी, तो हाँ जी, हाँ वो जी, एक प्लस मेंशन पॉइंट कर है सकते हैं। जी जी, प्लस पॉइंट एग्जैक्टली। अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया हुआ है तो उसको ऐड करने में क्या हिचकिचाहट है? आपने कैश करना है ना अपने आप को, तो जी ये जी तो पूछने वाली बात ही नहीं है, आपने उसको ऐड करना है डेफिनेटली। ठीक हो गया। सर सीजीपीए मेरी 3.44 है, लेकिन मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक अपनी फील्ड से रिलेटेड वेबिनार्स और सेमिनार्स अटेंड करना, उनके सर्टिफिकेट्स भी हैं मेरे पास। तो सर इसका मैं आंसर उसको। कर चुका हूँ ऑलरेडी। इट वुड बी हेल्पफुल बट नॉट एज अ मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ योर सिलेक्शन, बट डेफिनेटली आप उनमें से जो रेलिवेंट है उनको ऐड करें, जो रेलिवेंट नहीं है उनको ना ऐड करें सीवी के अंदर। थैंक यू सो मच सर। नो वरीज। नेक्स्ट जी वी हैव उबैद। उबैद। जी उबैद अस्सलाम बताइए। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हो उबैद, एक्चुअली सर ठीक हैं मैं आप? बस ठीक ठाक सर, आप सुनाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत यार देर से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने सोचा आपसे खैरियत पूछ लूँ कैसे हैं? थैंक यू सर। असल में सर नेट की इशू थी, मैं रास्ते पर था तो मैंने सारा सेशन ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थी वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा फिर बाद में, मेरे ख्याल से आप शेयर कर देंगे। नहीं कोई मसला नहीं है उबैद, आप क्विकली पूछ लें क्वेश्चन, इतने लोगों को किए हैं आंसर तो आपको क्यों नहीं करेंगे? ओके सर। वैसे सर मैं केबीके से, और मेरा बैचलर जो है वो इंग्लिश में मैंने किया है। हाँ आप जी। तो जानते हैं केबीके के बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, मतलब विदाउट स्कॉलरशिप अगर आप ऐसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ रहे हैं। तो हम्म। इस हवाले से अगर हम गाइड करें तो। यार देखो, इमिग्रेशन में तो मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है डेफिनेटली। वीज़ा प्रोसेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसमें क्यों रिजेक्शंस आती हैं या क्या कर रहे हैं वो, किस हिसाब से कर रहे हैं। तो देखें ओवरऑल अभी जो है वो उन्होंने काफ़ी जो है वो स्ट्रिक्ट किए हैं सिस्टम, तो वो चीज़ें हैं डेफिनेटली। बट ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं एंड इफ़ यू गेट द स्कॉलरशिप तो वीज़ा प्रोसेस जो होता है वो अमूमन स्कॉलरशिप वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इजी होता है, उनके चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं।
तो सेल्फ फंडेड का मुझे कोई आइडिया नहीं है, उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे की जाती अच्छा है, तो क्या बस प्रोसेस है। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब अगर स्कॉलरशिप लग जाए तो फिर तो कोई मसला ना होगा, फिर नहीं नहीं, फिर कोई वीजा मसला अप्लाई। नहीं होगा, फिर इंशाल्लाह आपका वीजा लग जाएगा। नो नो वरीज अबाउट दैट। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू सर, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टूवर्ड। अस्सलाम। जी बोलो जी जी। बोलो। आसम भाई यार, मैंने एमफिल किया है ऑर्गेनिक में, तो मेरे पास जो ठीक है हो गया। वो एक्सेप्टेंस है माइकल ब्रैड मोर की, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में ही है इधर ही। तो क्या मैं कश्मीर से हूँ, तो क्या कश्मीर वालों को वीजा कोई इशू तो नहीं होता? वीजा लग जाता है वैसा सीन? नहीं, कश्मीर वालों का वीजा नहीं लगता, उनको मना कर देते हैं। एनीवेज जी, हु इज नेक्स्ट? हमारे पास कौन है जी? सायरा। And next we have Saira Gultika. Please unmute yourself. And then Mohammed Yasir. जी सायरा अस्सलाम बताइए। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी बताइए। सर, मेरा BSMLT है और मैंने अपना एक थीसिस किया था जो कि मैंने सबमिट करवाया, लेकिन अभी तक उसकी पब्लिकेशन नहीं है। लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प की थी, तो मेरी 4th ऑथर जो है ना पब्लिकेशन है। अभी क्योंकि मैंने मास्टर्स करना है, उसके लिए मैंने अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लैब में मेरी जॉब नहीं हो रही। लाइक मेरी MLT की फील्ड है, तो फिर अगर मैं एकेडमिक्स में जा रही हूँ, उसको मैं एज वर्क एक्सपीरियंस अपनी CV के अंदर जो है वो मेंशन कर सकती हूँ। लाइक इररेलेवेंट फील्ड के अंदर जाके अगर आप जॉब करते हैं, तो वो आप अपनी CV के अंदर मेंशन करते हैं, तो क्या वो रिलेट कर जाएगा मेरी क्वालिफिकेशंस के साथ? इसके अलावा जब मैं मैट्रिक में थी, तो मैंने टेस्ट सेशन जो है ना मतलब प्रोवाइड किया था एकेडमी को, एक ना ऑनलाइन वर्चुअल, और उसके मेरे पास शील्ड भी पड़ी हुई है, तो क्या मैं उसको भी यूज कर सकती हूँ? जी जी डेफिनेटली आप कर सकती हैं यूज, नो वरीज अबाउट दैट। और इसके अलावा मैंने आपसे पूछना था कि मैंने यूरोपास पे CV तो बनाई हुई है और उसको मैंने टेलर भी करवाया एक दो से, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, बिकॉज मैं जब भी उसको सर्च करती हूँ ना, लाइक डिफरेंट वीडियोस से देखती हूँ, तो कोई सीक्वेंस जो है वो चेंज कर देते हैं। लाइक मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि BS में मैंने किया था, लैब डिजाइनिंग, और उसका एक फाइल बनानी होती है, वो बनाई, उसको मैंने फर्स्ट पे रखा। उसके बाद मेरा वॉलंटियर जो है वो काम है, उसको मैंने ऐड किया। फिर इंटर्नशिप्स थी मेरी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, उनको ऐड किया। और रिसर्च इंटरेस्ट और रिसर्च स्किल्स जो हैं वो मैंने, आई थिंक मेरे आ रहे हैं 4th नंबर पे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उनको मेरे BS के बाद, मतलब मेरी एजुकेशन के बाद, मेरे रिसर्च वाले पोर्शन को आना चाहिए। जी इसमें तो आपका कोई इशू नहीं है। जी जी इसमें कोई इशू नहीं है। जी जी मतलब सीक्वेंस का कोई इशू नहीं होता CV में? देखें, सीक्वेंस होता है डेफिनेटली। ये है कि आप पहले एजुकेशन को सॉरी पुट करें, उसके बाद आपका जो आता है सॉरी वर्क एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद आपकी एडिशनली आप पब्लिकेशंस के बारे में, फिर आप कॉन्फ्रेंस हैं आपके, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स, एंड उसके बाद देन गो टू द रेफरेंसेस, दोस थिंग। बट जो आपकी मोस्ट रेलिवेंट चीज़ है ना, वो आपकी एजुकेशन है ना। उसने बंदे ने खोल के देखना है कि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन को पहले रखें, वर्क एक्सपीरियंस को दूसरे पे रखें उसके बाद। जी। और 3rd नंबर पे मैंने ये क्वेश्चन ना चैट बॉक्स के अंदर भी किया था, दैट वाज टू लॉन्ग, सो आई थॉट मैं वॉइस में आपसे पूछ लूंगी। बिकॉज ऐसा होता है कि मैं अभी ना सर्च कर रही हूँ डिफरेंट कंट्रीज के प्रोफेसर्स को ना, तो मेरी आदत है मैंने एक को पढ़ना है, उसकी आगे पब्लिकेशंस उसकी, फिर मैं सर्च करना चाहती होती हूँ कि अच्छा इसकी प्रोफाइल मिल जाए, मैं इसको पर्सनल भी थोड़ा आप जब किसी से बात करते हैं आपको पता होना चाहिए उसका इंटरेस्ट कैसा है, आप कितना लॉन्ग कर सकते हैं, कितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि इफ यू पुट सो मच टाइम इन वन पर्सन एंड यू विल स्पेंड 2 to 5 days ऑन द वन प्रोफेसर, हाउ यू कैन से कि यही एक बंदा तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा तुम्हारी एक ईमेल पे? यू हैव टू सेंड अ लॉट ऑफ ईमेल्स टू अ लॉट ऑफ पर्सन्स। सो अगर 100 में से करोगी तो हो सकता है कोई एक तो तुम्हें एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर एक को ही कर लेती हो तो फिर ऐसे नहीं होगा कि वही तुम्हें मतलब एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। तो ये मैंने ऐसे ऐसे सोचा भी था एक दफा। फिर मुझे आज फिर अगेन मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला है। तो हम कैसे खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि 80% तक आपने एक ईमेल उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर दिया, तो अब सब्र कर लें, इस पे ही रुक जाएं? रुकना नहीं होता डेफिनेटली, अगर आप रुक गए तो आप गए। इवन 100% भी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई ओन एग्जांपल्स, मुझे अच्छा नहीं लगता अभी। सो आई विल लेट यू नो कि आई नो सो मेनी पीपल जिनका 99.99% स्कॉलरशिप के चांसेस थे, सब कुछ रेलिवेंट था, और उनका नहीं हुआ।
सो इट्स मीन कि स्कॉलरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आपको एक जगह से रिस्पांस नहीं आता तो आपने मीन टाइम दूसरों, इवन अगर आपको रिस्पांस आ गया, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है किसी से अनकंडीशनल, और अगर आपकी सिलेक्शन, जिस दिन आप, जब तक आपकी स्कॉलरशिप की ईमेल आपको नहीं ना आती उस दिन तक आपने रुकना नहीं होता। अगर आपकी एक जगह से ऑफर लेटर आ गया, आपका इवेल्युएशन में है ना, तो मीन टाइम ट्राई करते रहें दूसरे को भी। इट्स नॉट कि आपने सिर्फ एक को जो है ना वो पकड़ के रखना है और उसी को आपने सोचना है, नो नेवर। एटलीस्ट 2 वीक में एक सुपरवाइजर को अप्रोच जरूर करें। आई एम नॉट सेइंग कि हर दिन एक को करें, 2 वीक में एक सुपरवाइजर को अप्रोच जरूर करें एंड रीड अबाउट दैट सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट, पेपर्स। और 2 वीक में आई बिलीव आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी ईमेल को उसके साथ टेलर करने के। सो या Okay, thank you so much. मेरे इतने ही questions थे and I have taken a lot of time. Thank you so much. नो वरीज। ओके जी, हु इज नेक्स्ट? मिनाइल मिनाहिल खान। जी। सर जी वालेकुम सलाम जी, बताइए। सर मैंने आपसे ये बात पूछनी थी कि मैं भी बैचलर्स कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसे आप अर्न कर रहे हैं लेकिन वो आपकी बैचलर डिग्री से रिलेट ना करे, तो हम उसको अपने कोई भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने कर रहे हैं तो उसको मेंशन कर सकते हैं जो नहीं स्किल है ज़रूरत आपके। है मेंशन करने की। अगर आप फॉर एग्जांपल मतलब जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रही हैं वो चीज़ उससे रेलिवेंट नहीं है तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी? ये कॉमन सेंस की बात है, नहीं करेगी। सो नहीं नो सर, नीड टू मतलब कि ऐड दैट। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं कोकुलर एक्टिविटीज के, इस तरह की चीजें भी थोड़ा आपको हेल्प कर देती हैं। वो उस सूरत में करती हैं कि अगर आपकी मेन एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है तो वो आपके साथ अगर वो चीज़ें हैं, बट दैट शुड बी रेलिवेंट एक्चुअली। हाँ जी। जी, हु इज द नेक्स्ट? असद जी, असद बताइए। हेलो अस्सलाम असद। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, बताइए असद। सर अगर आइट्स के बगैर एमएस में अप्लाई करना हो ऑस्ट्रेलिया में तो कितने % चांसेस हैं? नहीं होगा आर्ट्स के बगैर मास्टर्स में। सर कोई यूनिवर्सिटी में नहीं करती अप्लाई मतलब? नहीं होता। आपको अगर हो भी क्या, वीज़े के लिए तो चाहिए ही चाहिए ना। चलें ठीक है। जी, ओके थैंक्स सर। नो वरीज। नेक्स्ट इज मोहम्मद आमिर। जी आमिर बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी आमिर। अच्छा आसम में मेरा ये क्वेश्चन है, मैं अभी चूल्हा से मास्टर कर रहा हूँ और एक्सपेक्टेड है मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा अक्टूबर में। ठीक हो गया। तो जो मेरा काम है ना, ये बिल्कुल नोवल काम है, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड है और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैं इससे पहले भी सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहा था डिफरेंट कंट्री में, लेकिन मुझे कोई रिलेटेड काम नहीं मिल रहा उनके ना। हम्म, तो काम सिमुलेशन के रिलेटेड है, अगर रेलिवेंसी मिलती भी है तो 30-40 मिलती है, एग्जैक्ट नहीं मिलती फील्ड। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्फ्रेंस पेपर इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि अभी जो मेरे कुछ रिजल्ट आए थे वो मैंने कॉन्फ्रेंस में प्रोसीड कर दिए हैं और अभी मैं पब्लिकेशन पे काम कर रहा हूँ। देखें आपने, चूल्हा का नाम अच्छा है, डेफिनेटली रेपुटेशन अच्छी है। ट्राई टू अप्रोच सुपरवाइजर्स। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो इंशाल्लाह यू विल गेट, और मेन टाइम ट्राई टू पब्लिश योर थीसिस एज वेल। होपफुली अच्छा होगा। बट हाँ, बट मेन प्रॉब्लम है रेलिवेंसी की, क्योंकि जो अभी जहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल नोवल काम है, मतलब मुझे कहीं नहीं मिला ये, कहीं भी हो रहा हो। नहीं मतलब ये है कि रेलिवेंसी आपको अगर 100% नहीं मिल रही तो ट्राई टू फाइंड 50%, 40%, 60% इंशाल्लाह। नो वरीज। हम्म, सही, बहुत शुक्रिया जी। जी, हु इज नेक्स्ट वन? सोनिया नेक्स्ट जी बताइए। सोनिया का वैसे ऑलरेडी हो गया है, हो लेट्स सी गया इनका? स्टिल शी हैव। इफ शी हैव एनी क्वेश्चन शी कैन आस्क। या या अदरवाइज द अवैस इज द लास्ट वन। जी ओवैस बताइए। अवैस आर यू एबल टू अनम्यूट? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज़ हाँ आ रही? जी। सर हाँ जी आपसे आ ये रही है। क्वेश्चन था कि अभी मेरी सेकंड ईयर हुई है और क्या मैं अप्लाई करना था मैंने बाहर के लिए। मेरा पीटी मैंने दिया है, 6.5 बैंड्स हैं और मेरे मैट्रिक में 96% है और मेरे इंटर में 84% है। तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करूं या किस कंट्री में आप सजेस्ट करते हैं मुझे?
यार मुझे कोई आइडिया नहीं है स्कॉलरशिप के बगैर अप्लाई करने का, इसलिए मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। अंडरग्रेड के लिए स्पेसिफिकली आई डू नो अबाउट सम ऑफ द स्कॉलरशिप विच आर हंगरी, तुर्की के लिए भी हैं। इसके अलावा आई थिंक पोलैंड के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, और अंडरग्रेड की कुछ और स्कॉलरशिप्स भी हैं, बट आई एग्जैक्टली डोंट नो कि आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। आई थिंक ये मशवरा आप जो है वो हमजा भाई से ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एज कम्पेयर टू मी, आई थिंक उनको ज़्यादा इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज ही इज़ डूइंग मास्टर्स राइट नाउ। सो आई थिंक वो इसमें बेटर पोजीशन में होंगे। ठीक है। अ, और सर स्कॉलरशिप के हवाले से अगर देखा जाए या लिविंग स्टाइल के हवाले से, तो कौन सा मुल्क आपके हिसाब से कौन सा बेटर है कंट्री? यार देखो, अगर आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो दुनिया के सारे मुल्क ही अच्छे होते हैं, क्योंकि द जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इफ़ यू हैव फाइनेंशियली गुड, आई मीन स्टेबल, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो फिर आपको किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप सेल्फ पे हैं तो आप जिस कंट्री में चले जाओ वहाँ पे आपको रोल ही मिलने हैं। तो इसलिए ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो, बीएस के लिए, तो ट्राई टू फाइंड सम स्कॉलरशिप। अगर वो मिल जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर हासिल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ख्वारी काटनी पड़ेगी 2 3 4 साल की, फिर उसके बाद ही आप अच्छी पोजीशन पे जाओगे डेफिनेटली। शुक्रिया सर। नो वरीज। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक हमजा, राइट? You having my voice? जी जी, मैं सुन सकता हूँ हमजा। Okay, okay. I think so. Yes, we have taken all the questions. और आप वही लोग हैं जो आप समझते हैं, तो हाँ थैंक्स जी। अ लॉट। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, माशाल्लाह ये सेशन जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है। बाकी मैं कुछ पार्ट नहीं ले सका, बट आई विल डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग, बिकॉज आप देख सकते हैं कि मैं लैब कोर्ट में स्टिल जो है वो मैं लैब पे काम कर रहा था, और हाँ बट हाँ, मैं वो स्टिल लैब कोड देख के मुझे आइडिया हो गया था। नो वरीज। हाँ बट जी। स्टिल योर सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और सर जजाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आप मुल्क कौम के लिए जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, और गाइडेंस सेशंस, और आप ग्रुप्स में भी गाइडेंस कर रहे हैं, और आपने मलेशिया में हमारा बड़ा साथ दिया है, और उसमें भी कुछ लोग जी जी, हमारे अहबाब के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर जी, हैविंग अराउंड 120 प्लस स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, सो वी आर रियली माशाल्लाह होपफुल कि माशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हों। यस, सो थैंक यू फॉर यू आर हैविंग मी हमजा, और आपने वेलकम ऑनर सर, यू आर किया, प्राउड आपने ऑफ आवर बुलाया। पाकिस्तान। थैंक यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो सर, बाकी चलें, सी खुश यू रहें इंशाल्लाह, अगेन। सारे लोग आबाद रहें और मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। और आखिरी बात ये है कि जो आपकी 49 ना होती है ना, उसके ऊपर एक हाँ जो 50वीं होती है वो भारी होती है। बस इस मोटिवेशन के साथ काम करते रहें। अल्लाह आपका हामी डेफिनेटली। नासिर हो। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।